हेलो गाइस, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से जीआईपी सीआईबी प्रेप पे। आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट विच इज कॉल्ड डेरिवेटिव मार्केट। ओके, सो मॉड्यूल डी का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आप इसको मान के चलिए। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसके ड्यूल बेनिफिट है। एक तो आई एन आई एफ एस में आपको ये पूछा जाएगा, इसके साथ साथ आपका जो आपका एएफएम सब्जेक्ट के अंदर भी आपको इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो काफी डिटेल में हम लोग आपका इस पर्टिकुलर यूनिट को पढ़ेंगे और इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आप जब सीआईबी बीएफएम पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको ये हेल्प करने वाला है। ठीक है गाइस? सो when we talk about module D, so far we have covered these particular units. ठीक है? So module D में आपका financial market, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फिक्स इनकम, फॉरेन एक्सचेंज, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट एंड मार्केट डायनेमिक्स, मर्चेंट बैंकिंग, ये सारे यूनिट जो अभी तक हमने कवर किए। तो आज का जो यूनिट है जहां पे हम लोग बात करेंगे डेरिवेटिव मार्केट के बारे में। ठीक है? सो डेरिवेटिव्स से रिलेटेड आपका जैसे व्हाट इज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ओटीसी वर्सेस एक्सचेंज ट्रेडेड, इसके अलावा आपका जो टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स हैं, फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप्स, काफी डिटेल में इनको समझेंगे और साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ डेरिवेटिव मार्केट्स इन इंडिया। तो ये कुछ कोर्स करिकुलम जो सब टॉपिक्स आपके हैं जिनको वन बाय वन हम लोग यहाँ पे आपका डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। लाइक डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम और it is dependent upon an underlying asset, right? Underlying asset could be stock, commodity, currency, or any indices, and like the different way, right? So derivative की अगर हम लोग बात करते हैं, so basically what does it mean? पहले तो हम definition को थोड़ा सा decode कर लेते हैं, ठीक है? So the term derivative stand for a contract whose price is derived from or it is dependent upon an underlying asset. Underlying asset could be currency, stock, market indices, and interest bearing security or a physical commodity as well. So this is a very basic definition. Whenever you search derivative, you'll do Google or you'll open any book, you'll find the same definition. Now what does it mean? इसका मतलब क्या हुआ आपका? ठीक है, जैसे suppose that there is a XYZ security, right? So XYZ company whose current market price, cash price is suppose that 500, right? अब this is an underlying asset, ठीक है? ये आपका क्या है? Underlying asset है. Based on this particular underlying asset, we generally calculate prices in future also, ठीक है? तो आपका जैसे there are four type of derivative: future, forward, options, and swap. In case of equity derivatives, we have 3 months contract are available. In case of commodity and currency derivatives, there are 12 months contract are available for exchange traded derivative. For in case of OTC over the counter, it can be like 15 days, it can be 1 month, 1 year, or it can be more than 1 year also. But whenever you see the exchange traded derivatives, they are only 12 months contract are available at a time in the market. For currency and commodity, for equity there are 3 months contract are available. Like let's say this is the current market price and we are in September months. So September, we have September prices, we have October, and we have November. Okay, in case of equity derivative. In case of commodity and currency, you'll see 12 months contract at a time. Okay. तो जैसे सितंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म होगा, सो एक्सपायरी लाइक इन केस ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव वी हैव लाइक लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ विच इज एक्सपायरी डेट, ठीक है? तो जैसे ही आपका सितंबर मंथ का लास्ट थर्सडे आएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सपायर होगा एंड इधर दिसंबर मंथ का ऐड हो जाएगा एंड आपका सितंबर विल एक्सपायर इन दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है? तो अब जैसे सपोज दैट बेस्ड ऑन द कैलकुलेशंस, calculation are very complex in case of derivative. So suppose that if you talk about the XYZ future contract which are available for 3 months, it is showing somewhere 510. It is suppose that 517 and it is 525, right? Suppose that this high volatile currency, high volatile underlying asset. तो जहां पे आपको ये तीन prices आपका future में मिल रहे हैं. So now again you will come to the definition. Derivative are financial contract
whose value is derived from. So this value is derived from or dependent upon underlying asset, and underlying asset is XYZ. Okay, like we have different model. So there is one model called SCRT. I hope most of you heard about this one. Okay. So where S is equal to S is spot price. Okay. So in this case it is 500. E is exponential value, that is 2.71828, and R is required rate of return, suppose that it is 8%, and T is time duration. If you are calculating for 1 month, for September it is 1 divided by 12, for October 2 divided by 12, for November it is 3 divided by 12, right? So with this calculation we reach to this prices or these prices, right? So now if there is any change in this price, if there will be any changes in the underlying prices of this, so अगर ये आपका बढ़ता है तो ये भी आपके क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और अगर ये आपका इसके प्राइसेस घटते हैं तो इनके प्राइसेस भी आपका क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, ठीक है. सो डेरिवेटिव इज समथिंग लाइक जैसे देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मिल्क एंड कर्ड. सो मिल्क इज डेरिवेटिव और अंडरलाइन फॉर डेरिवेटिव कर्ड, ठीक है, कर्ड इज डेरिवेटिव, ठीक है. तो अगर मिल्क के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियस है कर्ड के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, और अगर मिल्क के प्राइसेस घटेंगे तो कर्ड के प्राइसेस भी घटेंगे, ठीक है. सिमिलरली गोल्ड, गोल्ड क्या आपका, अगर फिजिकल गोल्ड आपका कमोडिटी, उसके प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो उसके जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है उनके प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे. दैट मीन्स देयर इज हाई डिमांड, एंड अगर आपका डिक्लाइन होता है, सप्लाई होता है, तो उसके प्राइसेस भी घटेंगे. सो डेरिवेटिव आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स these whose value, these values are depend upon an underlying asset and they are derived from the underlying asset itself. Okay, that is the meaning of this particular definition. I hope this is clear. Okay. So underlying asset could be, it could be any interest rate or bonds, stock, currencies, market indices or commodities as well. Very simple, right? So now if you talk about the relation between derivative and treasury. So nowadays we are we are part of there are like, if you talk about the financial market, they are highly interconnectedness among each others, right? तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट, एंड ट्रेजरी इज द पर्सन who generally build this interconnection among the different markets, ठीक है. तो यहाँ पे आपका ऐसे different markets के अंदर आपका जो कनेक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है. तो ट्रेजरी का रोल हमने समझा. They generally manage ALM, they do the risk management, and they find out the arbitrage opportunities from the market, and they get in. They generally invest the surplus from the from one market to another market, ठीक है. तो अगर हम लोग बात करें डेरिवेटिव मार्केट प्रोडक्ट वाइडली यूज्ड बाय बैंक ट्रेजरीज. Treasury derivatives use derivative for managing risk, including ALM, to cater to a requirement of the clients and more particularly of the corporate customers to trade to take a trading position in derivative product, while cross currency derivative exists for long, and rupee derivative are of fairly recent origin and use certain derivative product to use is still regulated by RBI. Okay? There are three derivative. These are currency derivative, interest rate derivative, and your credit derivative. So these are get regulated by RBI, rest are get regulated by SEBI itself. ठीक है. तो जैसे let's say we have surplus ALM, ठीक है. जैसे हमारे पास let's say our receivable is scheduled for first and payables are on 15, ठीक है. तो 15 दिन के लिए हमारे पास surplus money है. So what treasury will do, they'll invest that particular money in certain, जैसे उसने derivative में भी invest कर सकता है if they have some arbitrage opportunities, or even like let's say if like to protect our existing portfolios, so derivatives are the like most favorable product, ठीक है, because they have high leverage value, ठीक है. तो इसमें आपको कोई additional amounts या जो भी required हो वो भी आपका जो margin होता है that is very smaller size, ठीक है. तो वो आपका यहाँ पे use किया जाता है, ठीक है. So regulators of derivatives, so we have two major regulators, one is SEBI, another one is RBI. So RBI which generally regulate three derivatives only, ठीक है. So these are interest rate derivatives, credit derivatives, and your foreign currency derivative, ठीक है. So different derivative instruments are
permitted and regulated by various regulators like RBI, SEBI and FMC. So now FMC get merged with SEBI only. So अब FMC वाला जो commodities derivative थे वो पहले FMC regulate करता था. In September 2015 FMC get merged with SEBI. तो उसके बाद आपका ये जितने भी derivatives हैं they get regulated by that means commodities derivative are also regulated by SEBI itself. ठीक है. So RBI is empowered to regulate interest rate derivative, foreign currency derivative and credit derivative. SEBI regulate stock market and FMC regulate commodities future. So now like FMC merge with SEBI, तो ये भी आपका किसके द्वारा regulate होते हैं? SEBI के द्वारा. ठीक है. So now the next one is this part is very important. I hope most of को इसके बारे में information होगा. ठीक है. One is we have two categories of derivative. One is OTC. Another one is exchange traded derivative. So let's understand this particular part clearly. Okay. So like if you talk about the derivatives, so we have four type of derivative. First one is forward. Then we have swap, the very important one for your examination. We have future. We have future derivative, and we have options. Okay. So options. So now like these are four type of derivatives. They are majorly categorized among two part. Between two part. One is OTC, over the counter, and these are exchange traded derivative. ठीक है. So अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है चीजों का. ठीक है. So forward and future are exchange trade OTC. Sorry, forward and swap are OTC, and future and options are exchange traded derivative. So like अब यहाँ से if you understand difference between OTC or OTC and exchange traded derivative, you know the difference between future forward versus future, forward versus option, swap versus future, swap versus options. ठीक है. तो इसलिए मैंने आपका ये चार्ट बनाया है. ठीक है. अब देखो क्या होता है whenever we talk about OTC, so these are private contract between two parties. ठीक है. जनरली आपका जो इंस्टीट्यूशन है, दो बैंक या बैंक एंड सम अदर एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स या एनी अदर इंस्टीट्यूशन, सो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है, सो दे आर कस्टमाइजेबल. ठीक है. सो इनको आपका पार्टीज, जैसे दो पार्टीज, पार्टी ए एंड बी, दे कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड वांट्स. ठीक है. In case of exchange traded derivative, these are standardized in nature and they are standardized by the exchange. They get traded in regulated stock exchanges like NSE, आपका BSE. तो जहां पे ये आपके ट्रेड होते हैं और इन्हीं के द्वारा इनका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है. स्टैंडर्डाइजेशन मींस their contract size, their expiry date और their tick size, everything is decided by the exchange. ठीक है. There is like these are less liquid. ठीक है. These are less liquid. Okay, so basically OTC contract are less liquid, they are highly liquid. ठीक है. These are highly liquid. Why so? ठीक है. ये आपका क्यों मैं बोल रहा हूँ. ठीक है. Because here we have only two parties, दो parties हैं आपका. ठीक है. buyer and seller. तो यहाँ पे आपका liquidity ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. Here we have number of buyers, number of sellers. ठीक है. तो जहाँ पे अगर आप बात करते हैं प्राइस ट्रांसपेरेंसी की, सो प्राइस ट्रांसपेरेंसी इज वेरी हाई and here we have very low because it is a private contract, right? So यहाँ पे आपका liquidity भी क्या होता है, there are number of buyers, number of sellers that which generally create diversity and which generally create liquidity in this particular one. ठीक है. तो इनका बेनिफिट क्या है कि they can be customized as per their requirements. ठीक है. जैसे एक्सपायरी डेट है, आपका अमाउंट है, others these are the one. तो अगर आप ये चीजें समझते हैं, if examiner ask you question based on future versus forward or swap versus option और swap versus future, this versus this और आपका जो भी एरियाज है. ठीक है. तो इस तरीके से जिनको आप लोग ध्यान रखिएगा. चलो तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं थोड़ा सा इसको. ठीक है. सो आपका OTC contract are traded directly between two eligible parties with or without the use of intermediary and without going through any exchange. ठीक है. An exchange. The parameter of contract like size, maturity, etc. are not standardized. That means that is customized and are mutually agreed between the parties of the contract. Exchange traded derivatives are traded on an exchange. The maturity and size of product are standardized by the exchange. Trade in derivative product can be
done only through a member of exchange by paying initial margin and maintaining M2M, ठीक है, mark to margin, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल मार्जिन भी नहीं होता, यहाँ पे आपका M2M बेसिस पे आपका मैनेज किया जाता है। और ट्रेडिंग पार्टनर मींस शेयर ब्रोकर्स एंड अदर्स, जिनके थ्रू हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर रिस्क वाइज भी देखते हैं तो दिस इज हाई रिस्क की, देयर इज काउंटर पार्टी रिस्क इन्वॉल्व इन दिस केस। There is no counterparty risk because exchange or stand the guarantee, because they are asking to maintain you the margin or the margin account, ठीक है, on M2M basis। अब एक और चार्ट जो आपके उसमें दिया गया है, OTC product are different from exchange traded derivatives, तो these are OTC। OTC product are offered by bank and financial institution, need to authorize bank in India, contract date, amount and terms are desired by the clients, private contract, price is quoted on by the bank, adding the margin to the market quote, security, cash management, cash margin, charges on asset etc at M2M discretion based on client status, counterparty risk, bank risk is present but it is a party remote risk, yeah. Settlement is mostly by physical delivery, okay, मोस्टली यूज फॉर हेजिंग अंडरलाइंग रिस्क आपका, ठीक है, जैसे करेंसीज में आपका एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड आपका, सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड ओनली ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस, साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड विद प्रीसेट settlement date for the specific terms, transparent pricing based on screen based trading, exchange collect daily cash margin, no counterparty risk, mostly net settled by cash and mostly used for trading and speculation purpose, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज पता है तो आपको फ्यूचर वर्सेस फॉरवर्ड, फ्यूचर वर्सेस हैज या अदर्स, इनके बारे में पता है, ठीक है। So now, like, this is all about the basic introduction of derivatives, and as well as integrated derivatives. Now we will talk about types of derivatives, so I hope आपने बहुत बार पढ़े होंगे। So now we'll go through these particular one in detail. So the very first, like, we have 4 type of derivative: future, forward, options and swap, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है। So these are the 4 type of derivative: future, options, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस एंड स्वैप, ठीक है। तो ये 4 टाइप के डेरिवेटिव। सबसे पहला आपका फ्यूचर, ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था XYZ लिमिटेड का, ठीक है। तो फ्यूचर आर एक्सचेंज ट्रेडेड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्सचेंज ट्रेडेड है तो वो कंडीशंस आपका, दे आर देयर इज नो काउंटर पार्टी रिस्क, दे parties need to pay initial margin and they have to maintain that margin on M2M basis, ठीक है, mark to market basis, ठीक है, mark to market basis. These are standardized contract traded in regulated stock exchanges, and they have a fixed contract size and इसके अलावा जैसे आपका lot size and others, they get decided by the exchange itself, ठीक है। So a future contract is an agreement between two parties to buy or sell an asset at a certain time in future at a certain price. अब अगर आप फ्यूचर और फॉरवर्ड की डेफिनेशन देखोगे, यू विल फाइंड द सेम डेफिनेशन, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज फ्यूचर इज एक्सचेंज ट्रेडेड एंड फॉरवर्ड इज OTC, राइट। These are basically exchange traded standardized contract. The exchange stand guarantee to all transaction and counterparty risk is largely eliminated in case of future contract, ठीक है। So by purchasing the right to buy, an investor expect to profit from an increase in the prices of underlying asset. By purchasing right to sell, the investor expect to profit from the decrease in the prices of underlying asset, ठीक है। तो ओपन पोजीशन कैन बी बाय और इट कैन बी सेल, ठीक है। जैसे अगर आप कभी भी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, ठीक है, सो सपोज दैट देयर इज अगेन XYZ लिमिटेड, ठीक है, XYZ का आपका, and its spot price, current market price of this particular security is suppose that 100 rupees, ठीक है। तो ये आपका 100 रुपए में ट्रेड हो रहा है। सो नाउ वी हैव टू इन्वेस्टर X, ठीक है। सो इन्वेस्टर X आपका, जिसका परसेप्शन इज बुलिश अबाउट दिस, ठीक है, उसको लगता है कि मतलब ही इज बुलिश अबाउट दिस XYZ लिमिटेड। इसको लगता है कि आने वाले समय मीन्स लेट्स से सितंबर एंड तक या फिर अक्टूबर
एंड तक या फिर आपका नवंबर मंथ की एक्सपायरी तक, ठीक है। देयर आर 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल, ठीक है। सो सपोज दैट एज पर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ मिस्टर एक्स, prices of XYZ Limited will go up to 120 by the और बिफोर द एंड ऑफ अक्टूबर मंथ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अक्टूबर मंथ से पहले इसका जो प्राइसेस हैं 2024 से पहले इसके प्राइसेस आपका 120 से ऊपर चले जाएंगे। सो व्हाट ही विल डू, ही विल बाय, मतलब आपका ये क्या करेगा, जैसे सपोज दैट करंट मार्केट प्राइस ऑफ अक्टूबर इज सपोज दैट 107, ठीक है, 107 रुपये चल रहा है। इसकी एक्सपेक्टेशंस है कि 120 रुपये से ऊपर जाएगा। सो मिस्टर एक्स विल बाय the October future contract of this XYZ Limited, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आपका ये रहेगा, ठीक है। दूसरा, there is another person called Mr. Y, ठीक है। So Mr. Y who have like इसका जो थॉट है, इसको लगता है कि he has a bearish approach, ठीक है। इसको लगता है कि आने वाले समय में इसके जो प्राइसेस हैं, करंट मार्केट प्राइसेस हाउ मच आपका 100, ठीक है। इसको लगता है कि आने वाले समय में इसका जो प्राइस है इट विल कम डाउन टू सपोज दैट 80, ठीक है, बाय द एंड ऑफ नवंबर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट है, इसके प्राइस आ जाएंगे कहाँ पे, 80 पे आ जाएंगे। तो व्हाट ही विल डू, ही विल सेल दी नवंबर मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ ही विल सेल, ये क्या करेगा आपका, सेल करेगा नवंबर मंथ के फ्यूचर को, एंड ही विल बाय अक्टूबर मंथ कॉन्ट्रैक्ट आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो रहेगा, एंड अकॉर्डिंगली देयर पे ऑफ विल बी डिसाइडेड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका, अब जब हमारा लॉन्ग डेरिवेटिव होता है, ठीक है, लॉन्ग फ्यूचर होता है, ठीक है। सो पे ऑफ की अगर हम लोग बात करें, सो इफ वी हैव अ लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, अगर आपका लॉन्ग है, सो द लाइक पे ऑफ इज कि जहाँ पे बेसिकली मतलब ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट आपका होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा। और अगर आपका शॉर्ट पोजीशन है तो नीचे आएगा तो आपका क्या होगा, अगर आपका सेल पोजीशन है तो ये आपका प्रॉफिट एरिया होगा, मतलब 100 अभी जितना भी प्राइस है उससे नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा। अगर इसके एक्सपेक्टेशन मीट करेंगे जितने जल्दी उतना जल्दी प्रॉफिट आपका स्टार्ट होगा। बुल के केस में आपका जितना ऊपर जाएगा उतने जल्दी आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो परचेजिंग द राइट टू बाय इन केस ऑफ लॉन्ग एंड इट इज इन केस ऑफ शॉर्ट, ठीक है। इस तरीके से फ्यूचर आर ऑल्सो ऑफन यूज टू हैज द prices, the price movement of the underlying asset to help prevent losses from unfavorable price changes. There are tradable future contract for almost any commodity immediately such as grain, livestock, energy and others, ठीक है। तो सारे commodities के future आपको मिलेंगे, आपका करेंसीज के फ्यूचर मिलेंगे, आपको इक्विटी फ्यूचर, इंडाइसेस फ्यूचर, ये सारे जो मार्केट में मिलेंगे। सो दे आर जनरली यूज फॉर हेजिंग पर्पस एज वेल, ठीक है। तो हेजिंग में आपका कैसे इसका इस्तेमाल होता है, सपोज दैट यूएसडी आईएनआर, ठीक है, यूएसडी आईएनआर, ओके, विल टेक एन एग्जांपल ऑफ गोल्ड आपका, ठीक है। सो जहां से आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे, सो गोल्ड आपका, ठीक है, बिफोर बजट एंड पोस्ट बजट, ठीक है। तो गोल्ड आपका, जैसे सपोज दैट गोल्ड का prices was 75,000 per 10 gram, ठीक है। that time before budget it was somewhere this, ठीक है। and अब बजट में you have some analysis कि यार जैसे बजट के दौरान आपका क्या हुआ, गवर्नमेंट दे कम अप विद द थॉट कि जो गोल्ड के ऊपर जो कस्टम ड्यूटीज है उनको डिक्रीज कर दिया गया, ठीक है, उनको कम कर दिया गया। अब कस्टम ड्यूटीज कम होंगी, दैट मीन्स देयर विल बी मोर सप्लाई एंड प्राइसेस विल गेट डिक्लाइन, ठीक है। अब ऐसा आपका है, ठीक है। Suppose that there is a bank who have 100 crore rupees gold portfolio, ठीक है, एज अ प्रोप्राइटरी पोजीशन। आपके बैंक के पास 100 करोड़ रुपए का गोल्ड का प्रोप्राइटरी पोजीशन था, जिसका करंट मार्केट प्राइस आपका जो स्पॉट रेट चला था वो चला था आपका 10, ठीक है, 75,000 पर 10 ग्राम। अब क्या हुआ, आपको ये चीज पता चली यार गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटीज कम कर दी और हो सकता है नियर फ्यूचर में आपका गवर्नमेंट उसको और कम कर सकती है, बिकॉज दे हैव टू मेक पेमेंट्स ऑफ सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स, ठीक है। गोल्ड बॉन्ड्स, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स के पेमेंट करनी है, तो अगर ऊपर रहेगा, ऊपर करेंगे तो सरकार को बहुत पैसा देना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, अब नाउ यू आर इन अ ट्रैप सिचुएशन। पहला, यू हैव टू ऑप्शन, ईदर यू कैन एग्जिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वन, आपने 100 करोड़ रुपए का गोल्ड बेचा और निकल गए, ठीक है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, सेकंड ऑप्शन what you can do in the market, ठीक है। तो आपको लगा this news will make an impact on gold prices for 2-3 months only, ठीक है। आपको 2-3 महीने तक इसका प्राइसेस पे रहेगा, दोबारा से ये बाउंस बैक होगा, गोल्ड है बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। You have this type of perception, so what you can do,
जैसे ये सिचुएशन आपके हो सकती है। सो यू हैव टू लाइक, आप इसका जो फ्यूचर है, ठीक है, सो यू कैन सेल द फ्यूचर। अब यहाँ पे आपकी बाय पोजीशन है, हियर योर लॉन्ग पोजीशन इज बाय, सो हियर यू हैव टू मेक अ पोजीशन ऑफ सेल फ्यूचर ऑफ गोल्ड, ठीक है। आपने क्या करा, जो सपोज दैट अगस्त 2025 का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको सेल कर दिया, ठीक है, 100 करोड़ रुपीज का, विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल रुपी। क्यों इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा? बिकॉज यू ऑलरेडी ओन अ गोल्ड वर्थ रुपीज 100 करोड़ रुपीज इन योर कैश, ठीक है, आपके पास 100 करोड़ रुपए का गोल्ड का भंडार है, ठीक है। सो अब इससे क्या होगा ना, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वी हैव अ हेज पोजीशन, ठीक है। अब इसके बाद गोल्ड प्राइसेस आपका 75 से आपका 50,000 हो जाए तो 1 रुपए का नुकसान नहीं होगा, ठीक है, और 75 से 1 लाख हो जाए 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं होगा। सो हेजिंग इज अ सिचुएशन विच जनरली वी कैन से मेक अ बैंड, ठीक है, जो वो आपका अपसाइड और डाउनसाइड दोनों पोटेंशियल को ब्लॉक कर देता है। क्यों? अगर सपोज दैट इन सिचुएशन 1, ठीक है, सिचुएशन 1 में आपका क्या होता है, गोल्ड प्राइसेस केम डाउन टू 50, ठीक है, तो यहां पे आपका 50 अगर सच में आ गया, यहां पे आपने सेल कर रखा है, तो यहां पे आपका 25,000 पर 10 ग्राम का प्रॉफिट होगा, ठीक है, और इतना ही यहां पे नुकसान होगा, ठीक है, 25,000 पर 10 ग्राम का आपका क्या होगा, यहां पे नुकसान होगा, ठीक है, लॉस आपका होगा, ठीक है। अगर ये 1 लाख हो जाता है, ठीक है, 1 लाख हो जाता है, तो यहाँ पे आपका अगर ये बढ़ के 1 लाख हो जाता है, ठीक है, पर 10 ग्राम, तो यहाँ पे आप 25,000 पर 10 ग्राम गेन करोगे, और इतना ही आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, लॉस बनाओगे आपका दिस, ठीक है। तो दिस इज आपका, ये आपका कैश में था, और ये आपने क्या किया, उसके मतलब अपनी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने उसका फ्यूचर का इस्तेमाल किया और अपनी प्रोफाइल को आपका क्या कर दिया, हेज कर दिया, ठीक है। बट हेजिंग का अब यहाँ पे ना बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, ठीक है, विच आर नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स करिकुलम, अदरवाइज लाइक जैसे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, ऐसे बहुत सारी, ठीक है, हम लोग बहुत सारी टेक्निक्स का आपका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बट ये एक नॉर्मल लॉजिक आपका। अब यहाँ पे जनरली क्या होता है, जो एक्सपर्ट है ट्रेजरी, जो आपका चीफ डीलर्स है, ठीक है, वो क्या करेगा, सपोज दैट दिस न्यूज केम इन द मार्केट, ठीक है, गवर्नमेंट ने इम्प्योरिटीज कम करी, एक बार और कम कर दी, सच में ये 50,000 आ गया, ठीक है। सो दिस इज द आपका 50,000 मीन्स दिस इज द बेस, इससे नीचे गोल्ड नहीं आएगा एज पर द एनालिसिस इन ऑल। सो व्हाट दे विल डू, दे विल एग्जिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर, यहाँ पे इन्होंने सेल किया, बाय करेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट से खत्म कर देंगे। अब हमारी सिर्फ एक ओपन पोजीशन है जिसमें अभी तक हमारा नोशनली मतलब कोई भी लॉस नहीं है, ठीक है, नोशनल लॉसेस लाइक यहाँ से अगर हमने 25,000 कमाया था तो यहाँ पे 25,000 हमने गवाए, तो हम लोग अभी बराबर पे हैं। अब सच में अगर आपके एनालिसिस सही है, यहाँ से अगर गोल्ड प्राइसेस बाउंस बैक लेते हैं, देन यू विल स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रेटेजीज आपका मार्केट में काम करती है, ठीक है। सो हेजर, सो वी हैव डिफरेंट यूजेस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। Hedger, they generally use for hedging purpose. I hope now you can easily relate this. These are businesses or individuals that use future contract for protection against volatile price movement in the underlying commodity as gold. Speculators, जो आपका ट्रेडिंग मतलब फायदा उठाते हैं, ठीक है, आर इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, सम ट्रेडर्स यूजिंग देयर ओन मनी और सम यूजिंग ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स और ब्रोकरेज फर्म्स। Speculate trade futures contract use as they would trade in a stock or bond। जैसे होता है ना, लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे मतलब इंडिया में तो फिनेंस का बहुत ज्ञान मिलता है, ठीक है, कि आप निफ्टी परचेज करके छोड़ दो, ठीक है, उतना इन्वेस्टमेंट रखो कि आप एक निफ्टी को ओन करो, उतना करके मार्केट में छोड़ दो, ठीक है, निफ्टी ग्रो करता आया है, ग्रो करता जाएगा, मतलब दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, मतलब अनटिल अनलेस आपका कोई रिसेशन नहीं आता, 4-5 साल में तो ऐसे ही लग रहा है, सेंसेक्स आपका है, ठीक है, या अदर्स, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो अगर आपको लगता है कि यार हाँ आने वाले समय में इंडियन स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो बाय करके छोड़ दो, लगता है डूबेगा तो सेल करके छोड़ दो, ठीक है, तो बट दैट M2M यू हैव टू मेंटेन आपका, ठीक है। Clearing houses, in practice a clearing house is used to facilitate future transactions are so by being on the other side of all traders, a clearing house is a financial institutions formed specially to facilitate derivative transactions आपका, जो बाय सेल की आपका चीजों को देखता है, ठीक है। मार्जिन इज बेसिकली, मार्जिन अकाउंट आपका क्या होता है, जैसे हमने कोई चीज परचेज की, ठीक है, जैसे देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू इज 1 करोड़, इसका मार्जिन वाज सपोज दैट 10%, ठीक है, दैट मींस बाय पेइंग 10 लाख रुपीस वी एंटर्ड इनटू दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, हमने बाय किया,
अब आपको एम टू एम बेसिस पे इसको मेंटेन करना है। अब अगर इसके प्राइसेस ऊपर जाएंगे, ठीक है, अगर इसके प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो आपका मार्जिन क्या होता रहेगा, मार्जिन अकाउंट आपका क्रेडिट होता रहेगा, ठीक है। जैसे इसकी वैल्यू 1 करोड़ से 1.10 करोड़ हो गई, सो दैट इज अ स्ट्रेट प्रॉफिट ऑफ 10 लाख, आपका 10 लाख रुपए का फायदा है। बट एम टू एम कहां पे मेंटेन करना होता है, अगर इसके प्राइसेस आपका 1 करोड़ से नीचे आने लग गया तो आपके मार्जिन की वैल्यू कम होती जाएगी। यू हैव टू मेंटेन एट ए टाइम 10 लाख रुपीज मार्जिन। जैसे आपका मार्जिन 1 लाख से 90,000 सॉरी 9 लाख हो गया, सो यू हैव टू डिपॉजिट 1 लाख रुपीज टू दी क्लियरिंग हाउस, ठीक है। आपको 1 लाख रुपए आप इस कॉन्ट्रैक्ट में बने रहने के लिए 1 लाख रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव मेड दिस लॉस, क्योंकि ये आपका लिवरेज है आपका। आपने 1 करोड़ रुपए की चीज खरीदी है 10 लाख रुपए देके, ठीक है। अब इसका मतलब नहीं कि अब वो मतलब 1 करोड़ से आपका जब तक 10 लाख से नीचे नहीं आएगा तब तक आप उसको ऑन करोगे, नो, ठीक है। आप अगर ये चीज हो रही है, आपका 10 लाख की आपका मार्जिन है which is get decided by exchange, अगर आपका मार्जिन अकाउंट 9 हो गया, so you have to deposit that gap amount, ठीक है। so अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सीधा एग्जांपल पे आते हैं। assume that margin for rice contract is 5% and contract by 10 टन, ठीक है, 10 टन का लॉट साइज है। फ्यूचर इज क्लियर थ्रू अ क्लियरिंग हाउस मेंबर एट 6,000 रुपीज पर टन, ठीक है। तो 6,000 इंटू 10 आपका निकालो, 60,000 टन आपका हो जाएगा, ठीक है। 20 फ्यूचर उसने खरीदे हैं, तो 20 जैसे 6,000 10 इंटू 20 फ्यूचर, तो आपका 1 लाख सॉरी 12 लाख का आपका ये कॉन्ट्रैक्ट लॉट साइज आपका हो गया, ठीक है। 12 लाख का 5% इज मार्जिन, तो इसको कितना पे करना पड़ेगा इनिशियली, 60,000 रुपीज, ठीक है। सपोज द नेक्स्ट डे फ्यूचर प्राइसेस इंक्रीजेस, आपका ये बढ़ गए, आपका मतलब कितना था 6,000 से 6,100 हो गया, तो प्रॉफिट है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। सिंस द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज लॉन्ग पोजीशन इन 5 कॉन्ट्रैक्ट एंड प्राइसेस इंक्रीज विल लीड टू अ गेन, सो इन दिस केस गेन विल बी आपका गेन इक्वल टू डिफरेंस आपका 100 इंटू कितना कॉन्ट्रैक्ट था इसका आपका 20, 100 इंटू 10 इंटू 20, दैट इज द प्रॉफिट। तो कितने का प्रॉफिट है, 20,000 का प्रॉफिट है। The gain is added up to the margin amount and margin account balance will be 60,000 plus 20,000, it is 80,000, ठीक है। Next day the prices came down from this to this, तो अब इसका अपोजिट इंपैक्ट रहेगा। तो अभी इसका मार्जिन अकाउंट कितना हो गया 80,000, ठीक है। 60,000 इसने जमा किया था, जैसे इसने आपका यहां से इंक्रीज हुआ तो जो भी क्रेडिट हुआ था वो अभी घट गया है। दूसरा सिचुएशन ये है, ठीक है। तो अगर ये कितना हो गया है, लॉस इज इक्वल टू आपका 30,000, ठीक है। तो नाउ प्रॉफिट था 20,000 का, आपका लॉस है 30,000 का, 10,000 का इसका क्या होगा, गैप होगा, ठीक है। So 61,000 this equal to 30,000 is subtract the account balance is 80,000. So balance of account after second day will be 50,000 only, right? So इस तरीके से जो आपके इसके portions बने रहेंगे, ठीक है। मार्जिन अकाउंट ऑपरेशन ये जनरली मैंने मतलब if you are like if you do not have your that elective paper risk management, this is a course content of risk management actually, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है इसलिए मैंने रखा था, ठीक है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट इलेक्टिव नहीं है तो आपकी उसमें इतना डिटेल में नहीं दिया गया, बट हाँ अगर आप रिस्क मैनेजमेंट आपका इलेक्टिव पेपर है तो वहां पे डेरिवेटिव्स को इस तरीके से आपका डिफाइन किया गया, ठीक है। सो मार्जिन अकाउंट ऑपरेशन, द ऑपरेशन ऑफ मार्जिन अकाउंट एंड मार्जिन अकाउंट कैन बी समराइज जैसे on the day of contract is entered into, credit the account with the initial margin, जैसे 60,000 के साथ इसने किया था आपका, जो पिछला वाला केस हमारा था, ठीक है, यस, और यहाँ पे आपका 10 लाख था। दूसरा on daily basis compute gain and losses on future contract entered into, if there is any losses debit the loss from the margin account, if there is any gain to profit this, as long as balance in margin account is above the variation amount margin amount, the trader does not need to do anything, मतलब 60,000 था 80,000 हो गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। if the balance in margin account decrease below the variation that 60,000 से नीचे हो जाता है, will receive a margin call, ठीक है। margin call आपका रिसीव करने की जरूरत है, एक मूवी भी थी इसके ऊपर, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। on receiving the margin call, trader need to provide the additional fund to the broker. Additional fund is initial margin 60,000 minus आपका जो 10,000 हुआ था, ठीक है। पहले 20,000 का प्रॉफिट हुआ था, 30,000 का नुकसान हुआ, तो 10,000 का गैप that we you need to provide to the broker, right? When the additional money is paid, it will be credited in margin account. If additional money is not provided, the broker has right to
अनवाइंड द ओरिजिनल पोजीशन, वो चाहे तो आपके यहाँ पे उस पोजीशन को एग्जिट करा सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर वो अभी नहीं करेगा, कल के डेट में और मार्केट नीचे आ गया तो आपका नुकसान क्या होता आ जाएगा, और बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो दैट इज डाउन टाइप ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। से आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, ये आपका कॉमोडिटीज में हो सकती है, ठीक है। जैसे आपका गुआर गम है, इसके अलावा टर्मरिक है, कोरिएंडर है, इन सब के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल। अगर आपने कभी आपका ट्रेडिंग टर्मिनल्स पे देखा होगा तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट आपका, जैसे यहाँ पे कुछ नाम भी लिखे हैं जैसे मिल्क, कॉफी, ये अदर्स आपका बहुत सारे कॉमोडिटीज जो ट्रेड होती हैं, ठीक है। एनर्जी में आपका, एनर्जी के अंदर आपका जैसे क्रूड ऑयल बहुत चलता है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आपका क्रूड ऑयल है और नेचुरल गैस, दो सॉरी, ठीक है। सो क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस आपका, ये दो आपको मिलेंगे, ठीक है। बुलियन में अगर आप देखते हैं तो आपका जैसे गोल्ड, सिल्वर है, ये बुलियन के अंदर आपके आते हैं, ठीक है। अदर कॉमोडिटीज जैसे आपका लेड, जिंक, क्रूड ऑयल, ये सब। सो मेटल में आपका तो जैसे आपका गोल्ड, स्टील, कॉपर, ये पूरे मेटल के अंदर, इसमें भी बुलियन आपका गोल्ड एंड सिल्वर के लिए यूज किया जाता है। करेंसी फ्यूचर आपको मिल जाएगा अलग अलग करेंसीज में। फाइनेंशियल फ्यूचर आपका जैसे इंडाइसेस हैं या स्टॉक्स हैं, ठीक है। जैसे रिलायंस का फ्यूचर है, टीसीएस का है, या फिर सेंसेक्स या निफ्टी का फ्यूचर आपका है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स आई विल कवर दिस पर्टिकुलर, अच्छा ओके थोड़ा सा रह गया, ठीक है। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स आपका बेसिकली जहां पे एक नोशनल वैल्यू में आपका ट्रेड होता है, जैसे सपोज दैट देयर इज वन इंडेक्स, जैसे आपका रेपो रेट है, ठीक है। सो रेपो, करंट रेपो रेट इज 6.35%, ठीक है। अब देयर आर टू पार्टीज, ठीक है। ए जिसको लगता है कि आने वाले समय में रेपो रेट विल कम डाउन, बी आपका जिसको लगता है कि आने वाले समय में रेपो रेट विल गोस अप, ठीक है। ये दो पार्टीज, दोनों की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं। ये एक नोशनल अमाउंट पे एंटर करे। अब ऐसा अगर एक्सपेक्टेशन है तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया जहां पे ए बोल रहा है कि मैं इतने पे इसको सेल कर रहा हूं, बी कह रहा है मैं इतने पे इसको बाय कर रहा हूं, ठीक है। सो ये आपका सेल कर रहा है और ये आपका बाय कर रहा है, एक नोशनल अमाउंट। सपोज दैट नोशनल अमाउंट इज 1 करोड़। अब दिस कॉन्ट्रैक्ट इज सपोज फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। 6 महीने बाद अगर आपका जैसे सपोज दैट ये सच में नीचे आ गया, 6 से आपका आ गया कितना, 6% पे आ गया, तो 0.35 इंटू 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा किसका, ए का, ठीक है। और अगर ये ऊपर चला गया, इससे जितना भी ऊपर जाएगा वो फायदा दिलाएगा किसको, आपका इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, जो जैसे बॉन्ड्स या अदर्स इनमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड इंटरेस्ट रेट फ्यूचर इज financial derivative that allow exposures to change in interest rate, ठीक है। currency derivatives या others here. Interest rate future prices move inversely to interest rate. Investor can speculate on direction of interest rate with interest rate futures or else use the contract to hedge against the changes in interest rate. जैसे इन दोनों ने speculate किया, ठीक है। एक नोशनल अमाउंट जनरली इसमें होता है कि हम 1 करोड़ रुपए के उसके हिसाब से, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ 1 करोड़ रुपीज मनी बिटवीन दीज टू पार्टीज, दैट इज एक आपका जैसे हमने बनाया कि 1 करोड़ के हिसाब से हम पे आउट करेंगे, तो वो आपका, ठीक है। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट बेयरिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैश सेटल और इट कैन बी through delivery of underlying security like future. This agreement has long position to receive the interest and on a notional amount and short position is to pay the amount, ठीक है। जैसे A is in long position and sell position में आपका जो B था वो आपका पे करने के लिए रेडी हुआ था, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो फॉरवर्ड, whenever we talk about forward contract, so these are similar to future contract. The only difference is these are OTC. So now if a contract is OTC, over the counter, so there are so many things which are generally linked with that, right? तो जैसे हमने आपका OTC, these are private contract, that means they are customizable in nature, there is a counterparty risk, less liquid, तो ऐसे बहुत सारे features जिनको हमने समझा था, ठीक है। So let's go through the definition of forwards, ठीक है। So these are financial contract that obligate the contract buyer to purchase an asset at a pre-agreed price on a future specific date. However, forward are more flexible contract because the parties can customize underlying commodity as well as the quantity of the commodity and the date of the transaction, just because they are over the counter product, okay? So because these are OTC product, okay, that is over the counters, okay? So forward contract, if you talk about the forward contract, so they have like these are the features, counterparties, these are private contracts, so we have two parties involved in this. Underlying asset, there is an underlying asset, same as in case of future as well, okay? The
फॉरवर्ड प्राइस, ठीक है। सो जो बाइंग सेलिंग है दैट इज डिसाइडेड फॉर अ फ्यूचर डेट, ओके, लाइक दैट मीन्स सेटलमेंट विल हैपन इन फ्यूचर डेट, ठीक है। एंड एक्सपायरेशन डेट अगेन दैट इज ऑल्सो कस्टमाइजेबल बाय द पार्टीज, ठीक है। सो जो भी आपका जो भी इनके रिक्वायरमेंट्स है उनके हिसाब से, ठीक है। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विच इंक्लूड्स एसेट एंड अंडरलाइंग एसेट, ठीक है, जैसे मतलब it is part of derivative and derivatives value is derived from or dependent upon an underlying asset, right? Expiration date, the contract will need an end date when the arrangement is settled and the asset is delivered and deliveries is paid, ठीक है। तो एक फ्यूचर डेट आपका जहां पे बायर आपका बाय करेगा एंड सेलर विल sell that particular one and buyer will make the payment and seller will deliver the commodity, right? Or whatever the underlying asset. Quantity, there is a defined quantity, ठीक है। It can be notional in some case, जैसे forward rate agreements में आपका हो सकता है, ठीक है। This is the size of contract and will give specific amount in unit of the asset being bought and sold. Price, the price that will be paid on the maturation or expiration date must also be specified. This will also include the currency that payment will be rendered in, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जैसे वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो या फॉरवर्ड हो, ठीक है, हर एक उसमें आज आपका जो भी जब भी आपका जो डेट ऑफ डील है उसी दिन आपका ये सारी चीजें डिसाइड हो जाती है, जिसमें किस प्राइस पे आपका बायर विल बाय एंड सेलर विल सेल, दैट इज प्री डिटरमाइंड और दैट इज प्री डिसाइडेड, ओके। बस जो एग्जीक्यूशन आपका होगा या जो सेटलमेंट होगा दैट विल हैपन इन अ फ्यूचर डेट, राइट। यूजेस अगर हम लोग बात करें डेरिवेटिव का, जैसे सॉरी आपका फॉरवर्ड का, जैसे फ्यूचर आपका यूज होते हैं किस चीज के लिए, आपका स्पेक्यूलेशन इन ट्रेडिंग पर्पस के लिए मोस्टली, दे कैन बी यूज फॉर हेजिंग पर्पस एज वेल बट मोस्टली दे जनरली यूज फॉर द स्पेक्यूलेशन इन ट्रेडिंग पर्पस, ठीक है। बट फॉरवर्ड आर मोस्टली यूज फॉर द हेजिंग पर्पस, ठीक है। फॉरवर्ड में आपका जैसे फ्यूचर में we have retail participation also, but in case of forward the like this is kind of an agreement between two institutions, bank and other bank or bank and some other party like exporters, importers or any other institution. Retail participation is kind of least in these kind of agreements, okay? Forward contract are majorly used for hedge against potential losses. They enable the participant to lock in a price in future. This guarantee price can be very important, especially in industries that commonly experience significant volatility in the prices, ठीक है। तो जैसे आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होता है या अदर्स, ठीक है, सिंपल सा आपका जैसे किसी को एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, उसको 3 मंथ्स के बाद पेमेंट्स आपका करनी है, तो मे बी 3 महीने के बाद आपका यूएसडी आईएनआर जिस भी करेंसी में आपका पेमेंट होना है उसका प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो अभी से वो आपका एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं किसी इंस्टीट्यूशन के साथ एंड दे कैन लॉक इन देयर प्राइसेस, ठीक है। सो लाइक जैसे एग्जांपल आपका यहाँ पे दिया गया, ठीक है, ऑयल इंडस्ट्री entering into a forward contract to sell a specific number of barrels of oil can be used to protect against potential downward swing in oil prices. Forward are also commonly used to hedge against changes in currency exchange when when marking large international purchases as well, right? तो जैसे आपका कोई ऑयल एक्सपोर्टर है, ठीक है, तो सपोज दैट राइट नाउ एक बैरल का प्राइस था आपका $120 पर बैरल, ठीक है। अब उसको लगता है कि आने वाले समय में ऑयल के प्राइसेस नीचे आ सकते हैं, सो व्हाट ही विल डू, दे विल एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद सम अदर पार्टीज, ठीक है, जिसको लगता है कि आने वाले समय में बढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है आपका कि जो आपका एक्सपोर्टर है वो आपका 120 पे सेल कर देगा और जिसको लगता है बढ़ेंगे वो बाय कर देगा। इवेंचुअली 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद या जो भी एक्सपायरेशन डेट है उसमें जो भी चीजें होंगी उसके हिसाब से दोनों के, तो एक्सपोर्टर के लिए होगा कि हाँ उसका जो ओवरऑल कॉस्ट था या सब कुछ था उसमें मिला करके आपका जो भी प्राइस हो रहा था उसके हिसाब से उसका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा एट अ लाइक जो भी जो अभी करंट मार्केट कंडीशन है उनके हिसाब से, ठीक है। So a forward contract can also be used purely for speculative purpose. Sometimes it can be used for speculation also as well. This is less common than using futures since forward are created by
two parties and not available for trading on centralized exchanges, ठीक है. So like hardly used for speculation purpose, ठीक है, बहुत rarely आपके होते हैं. बट मोस्टली आपका जो स्पेकुलेशन या ट्रेडिंग के लिए यूज होते हैं वो आपका फ्यूचर, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी काफी ज्यादा होती है. देयर आर नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ सेलर्स. यहाँ पे आपका सिर्फ दो पार्टीज होती हैं, तो ऐसे ही पार्टीज का अरेंजमेंट करना इज वेरी टफ, राइट. If a speculator believe that the future spot price of an asset will be higher than the forward price today, they may enter into a long forward position. If future spot price is greater than the agreed upon contract price, they will make the profit. ठीक है, तो जैसे आपका फ्यूचर में था सेम ऐसा ही यहाँ पे भी, ठीक है. जैसे आपका सपोज दैट 6 month लेटर क्रूड ऑयल प्राइसेस और आपका जो 1 बैरल का प्राइस है दैट इज $130, और आपको लगता है कि आने वाले समय में 6 महीने के बाद एक्चुअल में इट विल बी $150, ठीक है. दैट इज योर स्पेकुलेशन. तो आप क्या करेंगे, बाय करेंगे $130 पे. अगर वो हो जाता है, इफ योर एक्सपेक्टेशन मीट विद द रियलिटी, सो यू विल मेक $30 पर बैरल का प्रॉफिट आपका, ठीक है. बट वहां पे आपका चीजें हो सकती है आपका रिवर्स भी हो, ठीक है. तो इस तरीके से, तो जैसे फ्यूचर में हमने आपका स्टॉक, करेंसी या कॉमोडिटी, इनमें आपका ट्रेडिंग सीखा था, वैसे ही यहाँ पे भी की जा सकती है. बट ऐसा रियल वर्ल्ड में आपका इसको स्पेक्यूलेशन के लिए बहुत आपका रियली यूज किया जाता है, ठीक है. फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स आर सिमिलर टू इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड. जैसे हमने इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड पढ़े थे, वैसे ही आपका फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स. तो यहाँ पे मतलब इंटरेस्ट रेट आपका जो फॉरवर्ड थे, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर जो आपके थे, दे गेट रजिस्टर्ड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस. ये आपका दो पार्टीज के बीच में सेम किसी इंडाइसेस के ऊपर उसका रेट बढ़ेगा या घटेगा, और एक नोशनल अमाउंट को ध्यान में रखते हुए. सो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स आर OTC कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज that determine the rate of interest to be paid on a agreed upon date in the future. The notional amount is not exchange but a cash amount based on rate differential and a notional value of the contract. A borrower might want to fix their borrowing cost today by entering into a forward rate agreement. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था किसमें, फ्यूचर में आपका हमने लिंक किया था किसके साथ, रैपो के साथ, ठीक है. सो रैपो रेट के साथ सपोज दैट आपका रैपो रेट आपका 6 मंथ बाद के उस पर हम लोग ये आपका फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स बना रहे हैं. एंड देयर इज वन पार्टी हु इज सेइंग कि आपका जो करंट रैपो रेट है 6.35%, ये इससे नीचे जाएगा. अनदर पार्टी बी एंड पार्टी ए इज सेइंग कि ये आपका ऊपर जाएगा, ठीक है. तो इन दोनों ने आपका एक नोशनल एग्रीमेंट्स बनाया worth rupees suppose that 10 crore, ठीक है. they do not exchange this 10 crore rupees, ठीक है, या 1 crore rupees suppose that, जैसे उसमें हमने लिया था एग्जांपल, ठीक है, 1 crore rupees के ऊपर. अब 6 मंथ के बाद अगर रेपो रेट सच में नीचे आ गया, ठीक है, रेपो रेट आ गया आपका कितना, सपोज दैट 6%, तो 35 बेसिस पॉइंट आपका दैट विल बी अर्न बाय बी. अगर ये इससे ऊपर चला जाता है, जितना भी ऊपर जाएगा दैट विल बी अर्न बाय ए आपका, ठीक है. तो इस तरीके से आपका दो पार्टीज के बीच में ओवर द काउंटर आपका, ठीक है, कुछ इस तरीके से जो कैलकुलेट होता है, ठीक है, जनरली. सो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स अगर प्राइसिंग की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो जिसमें आपका FRAP फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट पेमेंट्स, FRA फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स रेट आपका फिक्स इंटरेस्ट रेट दैट विल बी पेड. RS रेफरेंसेस, ठीक है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, अब जैसे रेपो रेट हमने लिया था, ठीक है. NP इज नोशनल प्रिंसिपल, जैसे 1 करोड़ हमने लिया था. P इज पीरियड, जैसे हमने 6 मंथ का लिया था, ठीक है, इट कैन बी 1 year 3 months और एनी कस्टमाइजेबल, ठीक है. Y इज नंबर ऑफ डेज इन द ईयर बेस्ड ऑन द डे काउंट कन्वेंशन, ठीक है. तो यहाँ पे डे काउंट कन्वेंशन आपका जैसे एक्चुअल 365, 30, 365, 30 और 360, जो भी हमने आपका कहीं ना कहीं एट द टाइम ऑफ डील आपका जो डिसाइड किया, तो उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन एक सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा कोई भी इसमें आपका डिफिकल्टीज नहीं है. कि 1 करोड़ पे हमने नोशनल अमाउंट लिया था, 6.35% रेपो था, बी ने बोला था नीचे आएगा, सच में नीचे आया 6% पे, 35 बेसिस पॉइंट, सो 0.35 into 1 crore, so that amount will be payable by A to B आपका, ठीक है. टर्मिनोलॉजीज की अगर हम लोग बात करें, FRA टर्मिनोलॉजीज, ठीक है. सो कॉन्ट्रैक्ट रेट आपका, ठीक है, so the interest rate the two contracting parties negotiating on the trade, this rate will be compared to a settlement rate आपका, जैसे 6.35 is the contract rate in our case, ठीक है. अब जब
फाइनल आपका एक्सपायरी डेट आएगा, उस डेट पे क्या चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से, मतलब दैट इज अ काइंड ऑफ बेंचमार्क, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका जैसे 6 मंथ हमारा था, ठीक है। फिक्स डेट आपका, फिक्सिंग डेट आपका, ठीक है, दिस इज द डेट ऑन विच रेफरेंस रेट इज डिटरमाइंड, जैसे आज हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सो दैट इज द वन। बायर एंड सेलर, ठीक है, वन हु बाय जिसको लगता है कि ऊपर जाएगा, इन सेल जिसको आपका लगता है नीचे जाएगा, ठीक है। मास्टर एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट आपका बिटवीन दिस, ठीक है, बिटवीन ईच अदर्स बिफोर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मैच्योरिटी डेट फ्यूचर में 6 महीने बाद का जो भी डेट होगा, ठीक है। नोशनल अमाउंट 1 करोड़ जैसे था। रेफरेंस रेट आपका, ठीक है, जैसे आपका रेपो रेट था, ठीक है, तो या कोई भी अदर बेंचमार्क, ठीक है। इसके अलावा सेटलमेंट अमाउंट आपका, द अमाउंट कैलकुलेटेड एज डिफरेंस बिटवीन एफआरए रेट एंड द रेफरेंस रेट, ठीक है। द रेफरेंस रेट एज अ परसेंटेज, जैसे 0.35% का डिफरेंस आया था, ठीक है। सेटलमेंट डेट आपका, जिस डेट पे बायर इज गेटिंग सिक्योरिटी एंड सेलर इज गेटिंग अमाउंट, या सेटलमेंट इज लाइक सेम टाइम दो अकाउंट्स आपका इंपैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इनमें सेटलमेंट जनरली क्या होगा, जिसकी भी पोजीशन प्रॉफिटेबल है तो जो लॉस वाला है वो उसको पेमेंट करेगा, ठीक है। ट्रेड डेट आपका, ट्रेड डेट ऑन विच एफआरए इज नेगोशिएटेड, आज का डेट जो है, ठीक है। वेटिंग पीरियड, द वेटिंग द पीरियड कंप्राइज बिटवीन द वैल्यू डेट एंड द सेटलमेंट डेट, ठीक है। वैल्यू डेट एंड सेटलमेंट डेट इज लाइक, जैसे आपका जब भी आपका सेटलमेंट होना था बाय सेल, एंड उसके बाद आपका एक्चुअल पेमेंट्स, आपका जो रेमिटेंसेस हुई वो कौन से डेट पे हुई, ये हमने आपका फॉरेक्स में भी बहुत बार पढ़ा, ठीक है। तो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपका। अगला हमारे पास है ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस की जब भी हम लोग बात करते हैं, ऑप्शंस आर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स अगेन, ठीक है। सो वी हैव ऑप्शन, दे जनरली गिव buyer or seller right to buy or right to sell but not an obligation in future date, right? इस तरीके से हमने इसको समझा। So there are two type of option, one is call option, another one is put option, ठीक है। तो call option which give right to buy but not an obligation, put option that give right to sell but not an obligation, ठीक है। So options आपका like when we buy these particular options, तो simple सा आपका जैसे we have two type of option, ठीक है। तो दो टाइप के आपके ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। एंड वन इज कॉल ऑप्शन, अनदर वन इज पुट ऑप्शन, ठीक है। सो व्हेन वी आर बुलिश अबाउट द सिक्योरिटी, सो वी विल बाय द कॉल ऑप्शन, ठीक है। बुलिश मींस जब हमें लगता है कि ऊपर जाएंगे प्राइसेस, सो वी विल बाय द कॉल ऑप्शन। जैसे सपोज दैट देयर इज अ XYZ सिक्योरिटी, ठीक है। सो एक XYZ सिक्योरिटी आपका है, ठीक है, जिसका करंट मार्केट प्राइस इज 100 आपका। सो देयर इज अ इन्वेस्टर कॉल मिस्टर एक्स, जिसको लगता है आने वाले समय, अब कॉल ऑप्शन, ऑप्शंस के केस में आपको क्या मिलेंगे, स्ट्राइक प्राइसेस मिलेंगे, ठीक है। 7 अपसाइड 7 डाउन साइड विद अ टिक साइज, जैसे सपोज दैट टिक इज 5, तो अगला आपका 105, 110, 115, 120, ऐसे आपको 7 अपसाइड 7 डाउन साइड, ठीक है। 95 आपका 19, 85, 75, आप सॉरी 85, आपका 80, इस तरीके से 7 डाउन साइड आपको मिलेंगे, ठीक है। सो मिस्टर एक्स हु वाज बुलिश अबाउट दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी, ठीक है, इसको लगता है कि आने वाले समय में जैसे सपोज दैट बाय द एंड ऑफ नवंबर 2024 the prices of company XYZ Limited will go up beyond 115, तो ये क्या करेगा, आपका मिस्टर एक्स विल बाय कॉल ऑप्शन ऑफ XYZ Limited एट अ स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगी इसका, आपका 115। तो 115 की स्ट्राइक प्राइस का जो भी प्रीमियम चल रहा होगा, ठीक है। सो सपोज दैट इसका प्रीमियम आपका है ₹10, ठीक है। सो 10 इंटू लॉट साइज, दैट विल बी द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आपका वो इसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा, एंड दैट विल बी द मैक्सिमम लॉस, ठीक है, इन केस ऑफ अ लॉन्ग कॉल। तो एक्स को आपको लगता है कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा और इतने से ऊपर जाएगा बाय द एंड ऑफ नवंबर मंथ कॉन्ट्रैक्ट, सो you'll buy the call this आपका। तो कॉल कब परचेज करते हैं, when we are bullish about the security। वहीं आपका there is another investor मिस्टर वाई, ठीक है, जिसको लगता है कि आने वाले समय में XYZ के प्राइसेस नीचे आएंगे, ठीक है। सो ही इज बियरिश अबाउट दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी, ठीक है, इसको लगता है कि आपका इसके प्राइसेस 85 से नीचे आएंगे। तो व्हाट मिस्टर वाई विल डू, ठीक है, सो मिस्टर वाई विल purchase or make a long position by put option, ठीक है, put of XYZ Limited at the strike price of, strike price कितने पे, 85 पे, ठीक है, जिसका प्रीमियम आपका चल रहा है सपोज दैट
current market premium is 5 rupees, तो 5 into lot size, so this will be investment and this will be the maximum loss, ठीक है. So in case of call option we have a bullish trend. In case of put option, when we buy put option when there is a bearish trend in the market, ठीक है. तो कहीं ना कहीं इनके जो पे ऑफ्स हैं वो इसी तरीके से डिजाइन होते हैं, ठीक है. इन केस ऑफ लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट there is unlimited profit, limited loss, limited loss up to premium paid, ठीक है. जैसे इस केस में आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है कितना, 10 इंटू लॉट साइज विच इज डिसाइडेड बाय द एक्सचेंज. जैसे 1000 है सपोज दैट, तो 1000 इंटू 10 इज 10,000, तो 10,000 इज द मैक्सिमम लॉस. अपर साइड आपका प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, ठीक है. अगर हमारा लॉन्ग कॉल या लॉन्ग पुट है, ठीक है, ये आपका बाय पुट मींस लॉन्ग पुट, ठीक है. दिस इज अ लॉन्ग सिचुएशन, दिस इज अ लॉन्ग पुट सिचुएशन, ठीक है. तो अगर कल के डेट में सच में इसका प्राइस 85 से नीचे आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब जितना नीचे आएगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा. एंड मैक्सिमम नुकसान कितना होगा, 5 इंटू जैसे लॉट साइज 1000 है तो आपका 5000 इज द मैक्सिमम लॉस इन दिस केस, ठीक है. तो इस तरीके से आपके पे ऑफ्स जो डिजाइन किए जाते हैं. तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन आपका, ठीक है, इतना समझ में आया. सो कॉल ऑप्शन, कॉल गिव द बायर द राइट बट नॉट इन ऑब्लिगेशन टू बाय अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट एट अ गिवन प्राइस ऑन और बिफोर गिवन डेट, ठीक है. तो एट अ गिवन प्राइस मींस दैट स्ट्राइक प्राइस. ठीक है. पुट की अगर हम लोग बात करें, पुट ऑप्शन गिव द बायर the right but not in obligation to sell given quantity of the underlying asset at a given price on or before the given date. अब यहाँ पे not in obligation क्यों लिखा है? अगर एक्सपायरी पे सच में जैसे हमने समझा था पुट ऑप्शन में, जो हमारा इन्वेस्टर था मिस्टर वाई, ठीक है, जिसने 85 रुपीज का जो स्ट्राइक प्राइस है उसकी पुट को इसने क्या किया था, पुट इसने बाय किया था, ठीक है. मीन्स आपका वाई वॉज बुलिश अबाउट XYZ लिमिटेड, इसको लगता है कि 85 से नीचे आएगा. आपका करंट मार्केट प्राइस 100 था, ये सच में नीचे आया बट 85 से नीचे नहीं आया. सपोज दैट ये आया आपका 85 या 80 आपका 89 या इस प्राइस पे ही रुका, 90 पे आपका रुक गया, ठीक है, 90 से नीचे नहीं आया. सपोज दैट नीचे आया बट उतना नीचे नहीं आया जितनी इसकी एक्सपेक्टेशंस थी, तो उसका जो प्रीमियम आपका है ना 5 रुपए जो था वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है. अगर वो एक्सरसाइज नहीं भी करेगा तो एक्सचेंज विल सेल इट आउट, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा आपका, ठीक है. तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन. हाँ, अगर ये सच में आपका 85 उसने 85 का लिया था, एक्सपायरी पे स्टॉक का प्राइस चल रहा है 70 रुपीज, तो इट्स अ इन द मनी, ठीक है. ये क्या है आपका इन द मनी है. अब इन द मनी है तो ये एक प्रॉफिट सिचुएशन है, तो ये प्रॉफिट को बुक करने के लिए he has to sell this particular one, ठीक है. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, वन इज इन द मनी, ठीक है, आई इन द मनी, सॉरी चलो मैं लिख ही देता हूँ, इन द मनी, ठीक है. फर्स्ट वन इज इन द मनी, सेकेंड वन इज एट द मनी, एंड थर्ड वन इज आउट द मनी, ठीक है, आउट द मनी. इनको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ITM, ATM एंड OTM, ठीक है. इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट्स आपके लिखे रहते हैं, ठीक है. सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कॉल ऑप्शन, ठीक है. तो जैसे हमने XYZ लिमिटेड आपका जिसका करंट मार्केट प्राइस चला था 100, ठीक है. मिस्टर एक्स हु इन्वेस्टेड, मिस्टर एक्स आपका जिसने इसका स्ट्राइक प्राइस कितने का 115 का इसने बाय किया था, ठीक है, कॉल बाय किया था, जिसका प्रीमियम चला था आपका 10 रुपए, ठीक है. प्रीमियम वॉज 10 रुपीज, ठीक है. जिसने कॉल बाय किया था प्रीमियम आपका 10 रुपए पे, और आपका जो लॉट साइज था वो था 10,000 का इन्वेस्टमेंट इसने इसमें किया. सो नाउ इन द मनी क्या होगा आपका, अगर ये मतलब एक्सपायरी के दिन अगर ये इन द मनी रहता है, सो इन द मनी इज इक्वल टू व्हेन योर एक्सपायरी डेट पे ऑन एक्सपायरेशन, ठीक है, एक्सपायरेशन, ठीक है, ऑन एक्सपायरेशन, एक्सपायरी डेट जो आपकी होगी, ठीक है, एक्सपायरेशन डेट आपका, ठीक है, नवंबर मंथ का जो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा कौन सा है, नवंबर मंथ का, ठीक है. तो जो नवंबर मंथ का लास्ट थर्सडे है उस दिन, अगर उस दिन का स्पॉट प्राइस, आज का स्पॉट प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, एक्सपायरी डेट का स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन योर स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, आप लिखना पड़ेगा स्ट्राइक प्राइस, ठीक है. सो अगर आपका जो एक्सपायरी डेट का, जैसे आज का स्पॉट प्राइस इज करंट मार्केट प्राइस इज 100,
एक्सपायरी के दिन अब इसने क्या किया, कॉल बाय किया, कॉल बाय किया मतलब बुलिश है, ठीक है। अब नवंबर मंथ की एंड में या जब भी ये इसको एक्सरसाइज करे, ठीक है, तो उस दिन का अगर स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस, मतलब जैसे स्पॉट प्राइस आपका है सपोज दैट अच्छा चलो मैं एक बार ऐसे नंबर्स आपका लिख देता हूँ, ठीक है। स्पॉट प्राइस इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, और आपका स्पॉट प्राइस इज लेस देन योर स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस ऐसा आपका कुछ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, अगर आप इसको नंबर्स में डालेंगे, ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस तो हमारा सेम रहेगा सब में, कितना था 115, आपका 115 ये इक्वल है 115, ठीक है, 115। अब सपोज दैट जिस दिन ये एक्सपायर हुआ उस दिन प्राइस आपका था सपोज दैट 130, ठीक है, तो कितने का गैप है, 15 का गैप है, 15 पॉइंट का गैप है, तो 15 इंटू 1000 ये इसका सीधा सीधा प्रॉफिट 15,000 का प्रॉफिट, ठीक है। ये प्रीमियम है उस दिन का, मतलब प्रीमियम क्या होगा उसी तरीके से आपका इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो जैसे 10 रुपए का प्रीमियम था, हो सकता है ये प्रीमियम उस दिन आपका 30 रुपए हो, 25 रुपए हो, या जो भी आपका हो, ठीक है। वो टाइम ड्यूरेशन पे मैटर करता है कि ये अगर एक्सपायरी दिन की बात हो रही या फिर उस अक्टूबर में ही 130 आपका चला गया वहां पे उसने बेच दिया, ऐसा भी, ठीक है। अगर ये इक्वल है और ये आपका है सपोज दैट 110, मतलब ऊपर गया बट उतना ऊपर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे नहीं मीट कर पाया, सो दैट इज द वन, ठीक है। सो दैट मींस इन द मनी इज अ प्रॉफिट सिचुएशन, ठीक है, इन आपका, एंड इट इज अ लॉस सिचुएशन, ठीक है। और यहाँ पे भी लॉस है, एट द मनी पे भी लॉस है, लॉस है आपका जो प्रीमियम आपने पे किया है वो जीरो हो जाएगा अगर आप उसको होल्ड करेंगे टिल द मैच्योरिटी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका, तो ऐसे पुट ऑप्शन में आप इसको रिवर्स कर दोगे, ठीक है, रिवर्स करोगे तो उसमें भी इन द मनी आपका, इन द मनी क्या हो जाएगा, व्हेन योर इन द मनी कब होगा उसमें आपका, जब व्हेन योर स्पॉट प्राइस इज लेस देन योर स्ट्राइक प्राइस, क्यों, क्योंकि पुट में क्या होता है डाउन साइड को हम लोग आपका कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है बट अगर आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बीएससी एनएससी का वेबसाइट खोलो और वहाँ पे आपका जो किसी भी इक्विटी का आप ऑप्शंस चेन खोल सकते हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा, जितना क्लोजर होगा उतना होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू के हिसाब से उसका प्रीमियम उतना ज़्यादा होगा, जितना दूर होगा उसके हिसाब से उसकी होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, तो उसका प्रीमियम उतना ही क्या होगा आपका कम होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका बाय एंड अदर्स, ठीक है। तो थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं। So, internationally, options market has been around for a long period now. So, जैसे कुछ background. So, customized options were available OTC since 1920. देखो बहुत पुराना concept है, ठीक है। These options were mainly on commodities, ठीक है। 1920 हम जब मतलब इंडिया में तो जब ऑप्शंस क्या सेविंग अकाउंट ही मतलब बहुत बड़ा केस हुआ करता था, तब से चल रहा है, ठीक है। अब सब इंडिया में आज के डेट में सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम आपका ट्रेड होता है वो है ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस ऑन इक्विटीज बिगन ट्रेडिंग इन शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज CBOE in 1972. Options on currencies and bonds began in 1970. These were again OTC trades. Exchange traded options on currencies began in Philadelphia Stock Exchange 1982. Interest rate options began trading in CME in 1985. However, in India, अगर इंडियन मार्केट की बात करते हैं, from the time of inception, the options market was facilitated by exchanges. Options were available in off market, जिसको हम लोग आपका बदला सिस्टम या डिब्बा मार्केट बोलते हैं, लेकिन विच इज OTC आपका और लाइक विदाउट एनी रेगुलेशंस, ठीक है। Here is a quick recap. जैसे June 12th 2000 index future were launched. June 4th 2001 index option were launched. July 2nd 2001 stock option were launched. November 9 2001 single stock option stock future were launched, ठीक है। तो आपका 2000 से ही हमारे यहाँ पे इन सब चीजों के अंदर आपका ट्रेडिंग्स और आपका जो ऑप्शंस की फैसिलिटीज हैं स्टार्ट हुआ इंडाइसेस के साथ, देन ये आपका स्टॉक ऑप्शन पे भी और सिंगल स्टॉक ऑप्शंस पे भी मिलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। चलो नाउ कॉल ऑप्शन, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को, ठीक है। सो लॉन्ग कॉल मींस बाय, ठीक है। सो व्हेनेवर यू विल सी ओपन पोजीशन, आपका ओपन पोजीशन कैन बी बाय और सेल, ठीक है। लॉन्ग कॉल का मतलब है बाय कॉल, ठीक है। बाय कॉल मींस
वी हैव अ बुलिश अप्रोच, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे कैसे ये होता है, एक चीज हमने समझी, ठीक है। इफ वी आर बुलिश, अगर हम लोग किसी सिक्योरिटी के ऊपर बुलिश हैं, ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन बाय कॉल ऑप्शन, ठीक है, हम कॉल ऑप्शन को आपका बाय कर सकते हैं, प्लस सेल पुट ऑप्शन, ठीक है, आप पुट को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, इफ यू आर श्योर अबाउट दैट पर्टिकुलर ट्रेड। इफ यू आर बियरिश इन द मार्केट, अगर आप बियरिश हो, ठीक है, आपको लगता है कि आने वाले समय में प्राइसेस नीचे जाएंगे, सो व्हाट यू विल डू, योर प्राइमरी ट्रेड विल बी बाय पुट ऑप्शन, ठीक है, बाय पुट ऑप्शन प्लस यू कैन सेल कॉल ऑप्शन, ठीक है, आप कॉल ऑप्शन को सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका ये काम आता है, तो मतलब हम वो जो प्रीमियम है ना वो भी नहीं छोड़ना चाहते, हम श्योर हैं कि यार ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, भागेगा भागेगा, तो यहां से तो हमें फायदा मिलेगा ही मिलेगा, बट यहां से भी हम फायदा उठाना चाहते हैं। बट एक चीज ध्यान रखने वाली चीज होती है, ठीक है, जैसे कॉल ऑप्शन में लॉन्ग कॉल या लॉन्ग पुट, जिसमें क्या होता है, पे ऑफ क्या होता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस। बट इन केस ऑफ शॉर्ट कॉल एंड शॉर्ट पुट, अगर आप शॉर्ट कॉल करो, शॉर्ट कॉल का मतलब शॉर्ट आपका, जैसे शॉर्ट, इसको हम लोग सेल पुट या शॉर्ट पुट भी बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट पुट का मतलब बियरिश, ठीक है, शॉर्ट पुट का मतलब क्या है आपका, सॉरी बुलिश, शॉर्ट पुट का मतलब है बुलिश, और आपका शॉर्ट कॉल का मतलब है बियरिश, ठीक है। अगर आप कॉल को बाय कर रहे हो बुलिश, कॉल को सेल कर रहे हो बियरिश, तो अब बियरिश होने में, हम बियरिश थे सिक्योरिटी पे, हमें लगता है नीचे आएगा 100%, ऐसी न्यूज हमारे पास है, तो एक तो हमें पुट से हम एंटर किया, दूसरा जो मार्केट में आपका कॉल के ऊपर प्रीमियम था वो भी अर्न करने के लिए हमने इसको आपका कॉल को सेल कर दिया, ठीक है। बट इन केस ऑफ लॉन्ग कॉल एंड लॉन्ग पुट, पे ऑफ आर वेरी इजी और थोड़ा आसान भी है, अनलिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस अप टू प्रीमियम पेड। बट इन केस ऑफ शॉर्ट कॉल एंड शॉर्ट पुट, प्रॉफिट इज लिमिटेड अप टू प्रीमियम, जो भी प्रीमियम हो उतना ही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, बट लॉस कैन बी अनलिमिटेड, ठीक है, वो आपका कितना भी लॉस आपको देके जा सकता है। तो मतलब अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप खुद से ट्रेड करने लग गए और थोड़ा बहुत नॉलेज लेके तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। सो अ लॉन्ग कॉल कैन बी यूज टू स्पेक्युलेट ऑन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग राइजिंग, ठीक है, सिंस इट हैज अनलिमिटेड अपसाइड potential, but the maximum loss can be up to प्रीमियम पेड। समझ में आ गया, तो इसका पे ऑफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो जैसे आपका ये है प्रीमियम, ठीक है, दिस इज अ प्रीमियम रेंज, सो दिस इज योर मैक्सिमम लॉस, ये आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है, 10 रुपए का प्रीमियम था, जैसे ऊपर ये प्रीमियम आपका 10 से 50 रुपए भी हो सकता है, सो दिस इज योर प्रॉफिट एरिया, ठीक है। तो अगर वो चीज नहीं होती है जो आपने प्रिडिक्ट करी है इन केस ऑफ लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट, सो योर लॉस इज लिमिटेड, और अगर हो जाती है सच में तो प्रॉफिट में वो कितना भी प्रॉफिट देके जा सकते हैं, ठीक है। बाइंग कॉल ऑप्शन, ठीक है, सो बायर आर बुलिश ऑन अ स्टॉक एंड बिलीव दैट शेयर प्राइस विल राइज अबव द स्ट्राइक प्राइस बिफोर द ऑप्शन एक्सपायर, ठीक है। देखो अब यहाँ पे लिखा ना, शेयर प्राइस विल राइज अबव द स्ट्राइक प्राइस, मैंने आपको इन द मनी कैसे समझाया था, व्हेन योर स्पॉट प्राइस ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी इज ग्रेटर देन योर स्ट्राइक, आपकी जो स्ट्राइक है उससे ऊपर है, तो दैट मीन्स जैसे ये आपका 150 था, ये आपका 110 है, ठीक है, तो ये आपका दिस इज योर प्योर प्रॉफिट, ठीक है। If investor bullish outlook is realized and the price increase above the strike price, the investor can exercise the option and buy the stock at the strike price and immediately sell the stock at the current market price and book the profit. Simple सा। सेलिंग कॉल ऑप्शन, ठीक है, दिस इज अ डेंजरस वन, ठीक है, ये आपका स्ट्रेटेजीज में जब हम लोग स्ट्रेडल स्ट्रेंगल ऐसे आपके स्ट्रेटेजीज बिल्ड करते हैं तो वहां पे इसको यूज करते हैं, या फिर आपका जब बोलते हैं ना मैं 500% 200% श्योर हूं उस वाले सिचुएशन में, ठीक है। सेलिंग कॉल ऑप्शन इज नोन एज राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, सो इट इज नोन एज राइटिंग, ठीक है, कॉल राइटिंग, द राइटर रिसीव द प्रीमियम, ठीक है, उसको क्या मिलेगा, प्रीमियम मिलेगा, एंड दैट इज देयर मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। In another word, a buyer pay the premium to the writer, seller of an option. The maximum profit is the premium received when selling the option. ठीक है, और लॉस कितना हो सकता है, अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, ठीक है, जैसे जैसे ये आपका पे ऑफ है, ठीक है, तो आपका एक प्रीमियम इसका चला था 10 रुपए, ठीक है, आपने इसको 10 रुपए पे सेल किया, तो दिस इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक है।
सेल करने का मतलब आपको लगता है कि आने वाले समय में इसके प्राइस नीचे जाएंगे, तो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा था आपका सपोज दैट 100 रुपए, ठीक है, आपको लगता है ये नीचे आएगा, ठीक, एक तो आपने पुट ऑप्शन बाय किया था, दूसरा आपने ये करा, अब ये नीचे आएगा, ये अगर 100 रुपए से 50 रुपए आ जाता है तो भी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 10 रुपए का, ठीक है, 10 रुपए इंटू लॉट साइज आपका, ठीक है, इन केस ऑफ व्हेन यू सेल द कॉल ऑप्शन, व्हेन यू राइट द कॉल ऑप्शन, ठीक है। और पुट ऑप्शन अगर आपने इसका साथ साथ में परचेज कर रखा तो वहां से बहुत प्रॉफिट होगा, ठीक है। दूसरी तरफ अगर इसके प्राइसेस 100 रुपए से ऊपर जाने लग गए, ठीक है, जितना ऊपर जाएगा ना उतना ज्यादा लॉस आपका बनाता जाएगा, ठीक है, मतलब ये लॉस आपका ऐसे नहीं कि 10 रुपए पर लॉट साइज के हिसाब से, ये आपका अगर ये 100 से 200 रुपए हो गया ना तो ये आपके पोर्टफोलियो को जीरो भी कर देगा, ठीक है, उस तरीके से आपका जो चलता है, ठीक है। सो पुट ऑप्शन आपका समझ लिया हमने, ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। और लॉन्ग पुट मींस when you buy the put option, long means buy, ठीक है। So therefore is a short position in the underlying security, underlying security के अंदर short position means you have a perception that the prices of this underlying will go down, ठीक है, that is the meaning of this line, ठीक है। Since the put gain value as underlying price fall, ठीक है, they have a negative delta, ठीक है, proactive protective put can be a purchase as a short of insurance, providing a price floor for investors to hedge their position। मतलब ये स्ट्रेटेजी आपकी होती है प्रोटेक्टिव पुट इज लाइक कि आपने कॉल ऑप्शन, जैसे आपने 1 करोड़ के कॉल ऑप्शन बाय कर रखे हैं, आपको लगता है ऊपर जाएगा, उसी उसमें आपने दूर की स्ट्राइक प्राइस की उसके पुट भी परचेज कर लिए, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे आपका गेन है, सपोज दैट प्रीमियम आपका गया है सपोज दैट 10 लाख का, वहां पे 1 लाख का प्रीमियम दूर का अगर वो सच कुछ ऐसा मार्केट कंडीशन हो जाता है कि प्राइसेस एकदम धड़ाम से नीचे आते हैं तो उनकी वैल्यू बहुत तेजी से इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसलिए प्रोटेक्टिव पुट ये स्ट्रेटेजीज आपकी होती है, ठीक है। इन जनरल आपका पुट हम लोग कब परचेज करते हैं, व्हेन वी आर बियरिश अबाउट द अंडरलाइन, और जैसे करंट मार्केट प्राइस है सपोज दैट 100, हमें लगता है ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो आप उसका पुट बाय करोगे, जितना नीचे आएगा उतना ज्यादा प्रॉफिट देता जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम लॉस विल बी योर प्रीमियम पे, ठीक है। Since buyer of a put option want the stock prices to decrease, the put option is profitable when the underlying stock prices is below the strike price, ठीक है। इसका ITM कैसे बनेगा, in the money कैसे बनेगा इसका आपका, when spot is less than your strike, मतलब आपका स्पॉट है सपोज दैट 70, आपका स्ट्राइक है सपोज दैट 100, ठीक है, 100 रुपए से नीचे है, तो दिस इज अ प्रॉफिटेबल सिचुएशन, ठीक है, जैसे मैंने समझाया था ना, इन द मनी इज प्रॉफिटेबल, बट कॉल ऑप्शन में वो आपका अलग होगा, पुट ऑप्शन में अलग होगा, ठीक है। इफ द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस एट एक्सपायरी, द इन्वेस्टर कैन एक्सरसाइज द पुट, ठीक है, अगर ऐसा आपको मिलता है तो एक्सरसाइज करो, प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ, ठीक है। Selling put option again, it is dangerous game as selling call option, ठीक है। Selling put option is also known as writing a contract. A put option writer believe that underlying stock price will stay the same or increase, ठीक है। तो buy call option means bearish, sell call option means bullish, ठीक है, ये ट्रेंड ध्यान रखना, ठीक है। कॉल ऑप्शन अगर आप कॉल बाय करते हो मतलब आप बुलिश हो, कॉल को सेल करते हो मतलब बेयरिश हो, पुट को बाय करते हो मतलब आप बेयरिश हो, पुट को अगर आप सेल करते हो या राइट करते हो दैट मींस यू आर बुलिश, ठीक है। तो इसलिए कॉम्बिनेशन यूज होता है। आपने बोला मैं 200% श्योर हूं इस पे कि ये बढ़ेगा, तो मैं आपको बोलूंगा बाय कॉल ऑप्शन एंड सेल पुट ऑप्शन, ठीक है। तो दोनों तरफ से, उधर आपका जो कॉल ऑप्शन से तो फायदा होगा ही होगा, जो पुट का प्रीमियम है उसको भी क्यों छोड़ रहे हो अगर आप 200% सच में उस पर बुलिश हो, ठीक है, ऐसे। सो दिस इज द वन, ठीक है। अमेरिकन वर्सेस यूरोपियन ऑप्शंस, आई होप सुना होगा, ठीक है। तो ये जनरली दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट आपका इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं, इंडिया में आपका चलता है यूरोपियन ऑप्शंस, मोस्ट ऑफ वर्ल्ड आपका अमेरिकन ऑप्शंस में ट्रेड करता है, ठीक है। अमेरिकन ऑप्शंस क्या होता है कि दे कैन बी एक्सरसाइज एनी टाइम ऑन और बिफोर ऑफ देयर मैच्योरिटी पीरियड, बट ये जो यूरोपियन ऑप्शंस होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते रहते हैं और एक्सपायरी के दिन ही सिर्फ आपका ये क्या होंगे, आपका एक्सपायर होंगे, ठीक है, या आपके मतलब एक्सरसाइज के दिन एक बार से दूसरे बार दूसरे तीसरे में जाएंगे, लेकिन एक्सरसाइज आपका एक्सपायरी होगी सिर्फ एक्सपायरी के दिन। अमेरिकन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज एट एनी टाइम बिटवीन द डेट ऑफ परचेज एंड द एक्सपायरेशन डेट
European options are different from American options. They can only be exercised at the end of their lives on their expiration date. ठीक है, जैसे मैंने लास्ट थर्सडे आपको बताया. So this is the payoff. I hope ये समझ में आ जाएगा आप. ठीक है, तो लॉन्ग कॉल ऑप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो आपका मैक्स फॉर्मूला क्या होगा? मैक्स आपका ये जो मैक्स और जीरो का फॉर्मूला, ठीक है, आपका रहेगा. ठीक है, तो जो प्रीमियम आपने पे किया है दैट इज योर मैक्सिमम लॉस. ठीक है, जो भी आपने प्रीमियम, एंड प्रॉफिट साइड इज अनलिमिटेड. अगर वही आपका कॉल को शॉर्ट कर देते हो तो क्या हो जाएगा? मिनिमम इज अप टू प्रीमियम पेड, वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है. ठीक है, और आपका उससे नीचे जितना जाएगा दैट इज योर लॉस. वही कॉल पुट ऑप्शन में आपका लॉन्ग पुट ऑप्शन मैक्स इक्वल टू जीरो, मैक्सिमम लॉस इज अप टू प्रीमियम पेड, और मैक्सिमम प्रॉफिट इज अनलिमिटेड. ठीक है, वही आपका रिवर्स पुट ऑप्शन में कि अगर आप जो प्रीमियम है वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है और लॉस क्या है आपका? अनलिमिटेड है. ठीक है, तो दीज आर द पे ऑफ्स ऑफ योर ऑप्शंस. ठीक है, अंडरस्टूड? मतलब काफी ज्यादा डिटेल में मैं आपको इनको बता रहा हूँ. आई होप आप उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग रख पा रहे होंगे. थोड़ा सा भी डाउट आता है तो अपने डाउट्स कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं. ठीक है, फील फ्री टू आस्क गाइस, मतलब देयर इज नो बाउंडेशन, आस्क 10 टाइम. ठीक है, सो एक और आपका जैसे इसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं. लॉन्ग कॉल आपका जैसे दिस इज ऑप्शन प्राइस प्रीमियम जिसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है, तो ये आपका जैसे 10 रुपए है. दिस इज योर मैक्सिमम लॉस, दिस इज योर लॉस एरिया, एंड ये आपका ब्रेक इवन हो गया. इससे ऊपर जितना जाए वो आपका प्रॉफिट. ठीक है, सो लिमिटेड लॉस अप टू प्रीमियम पेड एंड प्रॉफिट इज अनलिमिटेड. ठीक है, ये आपका प्रॉफिट. वहीं आपका शॉर्ट कॉल के अंदर लिमिटेड प्रॉफिट 10 रुपीज अगर उसका है. ठीक है, सपोज दैट उसका प्रीमियम आपका 10 रुपीज आपका प्रीमियम है. सो दिस इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड आपका इससे नीचे जितना जाएगा सब आपका नुकसान होगा. पुट ऑप्शन के अंदर आपका दिस इज लॉन्ग पुट. तो लॉन्ग पुट मीन्स अगर आपने कॉल पुट बाय कर रखा है तो दिस इज योर लॉस एरिया. ठीक है, मैक्सिमम लॉस, लिमिटेड लॉस, प्रॉफिट इज अनलिमिटेड. ठीक है, यहाँ पे आपका लिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉस. ठीक है, सो दीज आर सम चार्ट्स जो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट, कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट मैंने आपको समझाए हैं, उनको अगर रिलेट करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलो तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस ऑप्शंस, एक बार इस लिस्ट को देख लेते हैं जल्दी से. The contract must be executed at contracted rate on the expiry date. The rate is fixed at current market quote. There is no fee payables, and quoted rate including bank margins, additional bank margin. Forward premium is the interest rate differential of two currencies. Forward contract is simple contract for purchase or sale currency. There is no variations. Buyer and seller have only counterparty risk, and there is no market risk is either of them so long as market is liquid. वही options की अगर हम लोग बात करें, the holder has a right to exercise the option but not an obligation. Right to buy in case of call, right to sell in case of put option. होल्डर में चूज स्ट्राइक प्राइस. ठीक है, कितना किस लेवल तक का बुलिश है, किस लेवल तक का बियरिश है. ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम इज पेबल फ्रंट एंड आपको इनिशियली टू एंटर इनटू द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी दैट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यू हैव टू पे द प्रीमियम अमाउंट. ठीक है, so which is a combination of intrinsic value plus time value. ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम इज डिटरमाइंड बाय द सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग स्ट्राइक प्राइस, वॉलेटिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट आपका. ठीक है, आप जैसे मैंने आपको बताया था ना, जितना क्लोज का, जैसे करंट मार्केट प्राइस 100 है, अगर आप 105 रुपए की स्ट्राइक प्राइस को कॉल को बाय करोगे तो उसका प्रीमियम ज्यादा होगा, और वहीं 120 का करोगे उसका प्रीमियम कम होगा, क्योंकि 105 होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू 120 आपका. ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल and simple to complex structure with varying elements of risk possible by combining purchase and written options. A writer of an option seller has unlimited risk, while the buyer of an option has full upside or limited risk up to premium paid and unlimited profit. There is no market risk in plain vanilla options. However, structured product may expose the holder to huge risk, जैसे हमने selling वाला केस समझा था. ठीक है, so this is all about your options. Understood? Swap.
I hope you have a general idea about these swap agreements. Okay, so swap are derivative contract, and these are OTC in nature, right? Over the counter. So swap is a type of derivative which is traded OTC, over the counter. That means these are private agreement between two parties. ठीक है, तो कैसे स्वैप काम करता है थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं. ठीक है, सो स्वैप मीन्स बेसिकली क्या होता है आपका एक्सचेंज. स्वैप मीन्स एक्सचेंज. जैसे ऊनो कार्ड होता है ना गेम आपका, उसमें कार्ड होता है स्वैप कार्ड. यू कैन स्वैप योर पोजीशन विद एनीवन, जो भी आपके टीम में बैठे हुए हैं. ठीक है, सो वैसे ही ये भी काम करता है. एक्चुअल इसका यूजेस कैसे है. ठीक है, जैसे सपोज दैट देयर आर टू कंपनीज, one is company A, another one is company B. They have taken loan from bank. ठीक है, या पार्टी ए एंड पार्टी बी. ठीक है, सो जिन्होंने लोन आपका लिया है, सपोज दैट दे हैव टेकन 10 crore रुपीज लोन, सपोज दैट इक्वल अमाउंट. ठीक है, एंड कंपनी ए दे हैव टेकन लोन एट 12% per annum, which is a fixed rate arrangement, and company B which has taken loan at MCLR plus 2%. ठीक है, so suppose that at the time of this agreement MCLR was 10%. ठीक है, assuming कि MCLR was 10% at this time. So overall अभी इसका जो interest rate है वो कितना है आपका 12% है. ठीक है, and loan period is suppose that 10 years or this is also for 10 years. ठीक है, अब आपका ये दो सिचुएशंस हमारे पास हैं. ठीक है, नाउ so suppose that now company A or party A and party B, they think उनका जो मतलब थॉट प्रोसेस है. ठीक है, सो कंपनी ए को लगता है कि आने वाले समय में दिस MCLR विल गो डाउन. ठीक है, सो MCLR विल गो डाउन. अगर MCLR नीचे जाएगा सो पार्टी बी विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, सो अगर आपका 10 से 8% हो जाएगा सो दे हैव टू पे 10% ओनली. ठीक है, एंड पार्टी बी दे हैव अ थॉट प्रोसेस कि MCLR विल गो अप इन द नियर फ्यूचर. ठीक है, MCLR आपका 12% तक जा सकता है. ठीक है, और कहीं ना कहीं देर आर सम अपसाइड चेंजेस इन द MCLR, सो विच विल लीड इंटरेस्ट रेट ऑल्सो. ठीक है, जितने से बढ़ेगा उतना आपका हो जाएगा. ठीक है, सो दैट मीन्स पार्टी बी को लगता है कि दिस फिक्स रेट अरेंजमेंट इज गुड रादर देन द फ्लोटिंग रेट. सो दे एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो इनको एक दूसरे की थाली का खाना पसंद आ रहा है. ठीक है, तो इन्होंने बोला क्यों ना एक एग्रीमेंट किया जाए जहां पे पार्टी ए इज एक्सचेंजिंग देयर फिक्स रेट विद फ्लोटिंग रेट एंड पार्टी बी इज एक्सचेंजिंग देयर फ्लोटिंग रेट पोजीशन विद फिक्स रेट. सो दैट इज दिस एग्रीमेंट बिटवीन दीज टू पार्टीज इज जनरली नोन एज योर स्वैप एग्रीमेंट्स. ओके, सो एक आपका ये हो गया. ठीक है, जैसे इसके अलावा आई होप आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के बारे में सुना होगा. बहुत ही ज्यादा ये ट्रेंडिंग है अभी. ठीक है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप. ठीक है, तो जैसे सपोज दैट देयर इज अ बैंक कॉल SBI, दे हैव गिवन लोन टू कंपनी X वर्थ ₹50 crores. ठीक है, सपोज दैट टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज हाउ मच 50 crore रुपीज. ठीक है, एंड एट द टाइम ऑफ लोन सैंक्शनिंग दिस गुडविल ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी वाज वेरी गुड, बट दिस लोन इज फॉर 10 years. ठीक है, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी है ना कि आने वाले समय में इसकी जो क्रेडिट वर्दिनेस है उसमें वीकनेस आ सकती है, तो जिसकी वजह से देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, राइट. सो नाउ व्हाट दिस कंपनी, ये जो कंपनी की टेंशन है कि यार आने वाले समय में अगर इसकी क्रेडिट वीकनेस हुई so it can make a default, so they entered into a contract with suppose that XYZ Financial. There is another bank or another company, so they entered into a contract with XYZ Financial as a where XYZ Financial is a protection seller. ठीक है, जो क्या कह रहा है कि if this XY company X will default, we will pay the remaining principal and interest amount. ठीक है, तो SBI as a protection buyer and XYZ is as a protection seller. So they entered into a contract where XYZ Financial is making promises on company X कि if company X will default, we will pay the remaining outstanding principal and interest amount, and for that particular one you have to pay us some amount which is generally known as premium. ठीक है, तो इसको क्या करना होगा, आपका प्रीमियम पे करना होगा. ठीक है, सो दैट इज द वन. अगर ये डिफॉल्ट हो जाता है, ठीक है,
सो बेसिकली XYZ विल मेक द पेमेंट्स, अगर डिफॉल्ट नहीं होता है सो दे अर्न दिस प्रीमियम, ठीक है। सो विदाउट ट्रांसफरिंग ओनरशिप इन दिस पर्टिकुलर एसेट, SBI is transferring a risk on that particular asset by entering into CDS या क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एग्रीमेंट्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स जिनके थ्रू हम आपका स्वैप एग्रीमेंट्स को, या जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्वैप हैं जैसे टोटल रिटर्न स्वैप, करेंसी स्वैप, आपका कूपन रेट स्वैप या अदर्स इंटरेस्ट रेट स्वैप, एवरीथिंग वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल आल्सो, ठीक है। तो सबसे पहले आपका डेफिनेशन, आई होप अब थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, ठीक है। So swap are derivative contract, they traded over the counter, ठीक है। जनरली जो बैंक और बैंक टू बैंक या आपका इंस्टीट्यूशंस के बीच में, यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन आपको ना के बराबर मिलेगा, ठीक है। प्राइमरीली बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेसेस और बिजनेसेस, since they are traded over the counter, the term of swap contract are negotiated and customized टू द नीड ऑफ द बोथ पार्टीज। तो जैसे हमने पास्ट में समझा OTC वर्सेस एक्सचेंज ट्रेडेड, जो डिफरेंस है वो आपने समझ लिया तो आपको सारी चीजें क्लियर हो। तो OTC प्रोडक्ट है तो आपका सारी चीजें अकॉर्डिंगली वो जो कंडीशंस लगती हैं वो आपका लगना शुरू हो जाएगा। स्वैप आर प्राइवेट एग्रीमेंट्स बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज कैश फ्लो इन द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू प्री अरेंज फॉर्मूला, जैसे कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई के बीच में अभी हमने किया था, ठीक है। तो दैट वाज वन, ठीक है। Swap usually involve the exchange of fixed cash flow for a floating cash flow, ठीक है। The most popular swap of type of swap are interest rate swap, commodity swap and currency swap। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स आपको मिलेंगे, वन बाय वन इन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले कुछ स्वैप टर्मिनोलॉजीज की अगर हम लोग बात करें, जैसे इंटरेस्ट रेट स्वैप आपका, जहां पे आपका एक नोशनल अमाउंट के ऊपर आपका, जैसे हमने पास्ट में भी फ्यूचर रेट एग्रीमेंट्स आपके पढ़े थे ना, वैसे ही टाइप का, ठीक है। So as stated, an interest rate swap is an arrangement agreement in which two counterparties agree the periodically exchange fixed and floating rate of interest rate over a number of period of time, या जैसे हमने कंपनी A एंड B, आपका A जिसने फिक्स रेट पे लोन लिया था एंड B जिसने फ्लोटिंग पे लिया था, ठीक है। तो दे एंटर्ड इनटू दिस पर्टिकुलर वन, सो दैट कैन बी वन, ठीक है। बायर एंड सेलर आपका, ठीक है। सो बायर आपका sometime like जैसे प्रोटेक्शन बायर, प्रोटेक्शन सेलर, ठीक है। XYZ फाइनेंशियल वाज प्रोटेक्शन सेलर, SBI लिमिटेड वाज प्रोटेक्शन बायर, ठीक है। So by a convention, the buyer of interest rate swap agree to periodically receive a floating rate and pay a fixed rate. He assumed the long position in the contract. The other swap counterparty known as seller agrees to periodically receive fixed rate of interest, ठीक है। Again कंपनी A and B को आप ले सकते हैं। नोशनल अमाउंट इज लाइक, जैसे कई बार क्या होता है कि अगर हम खाली एक इंडाइसेस के ऊपर, जैसे एक पार्टी ए को लगता है रेपो रेट विल इंक्रीज, पार्टी बी को लगता है रेपो रेट विल डिक्रीज, दे एंटर्ड इनटू अ इंटरेस्ट रेट स्वैप, ठीक है। तो अब उसमें मतलब दे मेंशन अ नोशनल अमाउंट, जैसे 1 करोड़ 10 करोड़ जो भी अमाउंट आपका है, सो दे आर एक्चुअली नॉट एक्सचेंजिंग दैट 1 करोड़ एंड 10 करोड़। उसके बाद जो आपका इवेंट्स अकर होगा, जैसे अगर रेपो रेट सच में इंक्रीज हो गया तो जो आपका प्रोटेक्शन बायर, जो आपका बायर है आपका उस पर्टिकुलर उसका, दे विल गेट बेनिफिटेड एंड सेलर विल मेक द डिफरेंस अमाउंट पेमेंट, ठीक है। टेन्योर आपका जिस भी टाइम ड्यूरेशन के लिए, स्वैप फैसिलिटेटर्स, कोई मीडिएटर भी हो सकता है, ठीक है। स्वैप ब्रोकर्स भी हो सकते हैं, स्वैप डीलर्स भी आपका, जो जनरली बैंक्स या अदर्स जो इस पार्टीज में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग उसमें। सो टाइप्स ऑफ स्वैप की अगर हम लोग बात करते हैं, सो वी हैव इंटरेस्ट रेट स्वैप फर्स्ट। In interest rate swap, one party agreed to exchange interest payment based on a fixed rate with another party interest payments based on floating rate. जैसे अभी एग्जांपल हमने लिया था, ठीक है। करेंसी स्वैप आपका, करेंसी स्वैप जनरली क्या होता है, जब इंटरनेशनल आपके रेमिटेंस, मतलब इंटरनेशनल आपका जब दो अलग अलग पार्टीज हैं और दो अलग अलग पार्टीज अलग अलग कंट्रीज को आपका बिलोंग कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ये कैसे आप इसको समझेंगे, जैसे देयर आर टू पार्टीज, वन पार्टी जैसे कंपनी एक्स which is a Indian company, ठीक है। ये आपका एक इंडियन कंपनी है, who want to start their business in US, ठीक है। इनको US में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। there is a company A which is American company which wish to start their business in India, ठीक है। इनको इंडिया में अपना बिजनेस आपका स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका, अब जैसे मतलब इंडियन कंपनी को यूएस में बिजनेस स्टार्ट करना है, दैट मीन्स दे नीड डॉलर्स, ठीक है। इसको डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है
और कंपनी ए आपका जो इंडिया में करी है तो उसको रुपीज का रिक्वायरमेंट है। बीइंग एन इंडियन कंपनी इट इज इजी टू गेट लोन इन इंडिया, तो इंडिया में लोन लेगी इंडियन कंपनी एंड इट विल प्रोवाइड टू यूएस कंपनी, यूएस कंपनी विल टेक लोन इन यूएस एंड दे विल प्रोवाइड दैट मनी टू इंडियन कंपनी। तो इस तरीके से इट कैन बी प्रिंसिपल ओनली, इट कैन बी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और इट कैन बी इंटरेस्ट और कूपन ओनली। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में आपको जो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, so currency swap, in currency swap one party agree to exchange payment based on one currency with another party for payment based on another currency, जैसे रुपी और डॉलर। ठीक है, कॉमोडिटी स्वैप आपका, जैसे कॉमोडिटी स्वैप कैसे काम करते हैं, लेट्स से आपका एग्जांपल लेते हैं गोल्ड का। ठीक है, सो देयर इज अ पर्सन कॉल्ड मिस्टर एक्स who own suppose that 10 kg गोल्ड। ठीक है, 10 kg इसके पास गोल्ड आपका है। ठीक है, सो अब इसका जो रिटर्न है दैट विल बी डिसाइडेड बाय द मार्केट फैक्टर्स। ठीक है, मार्केट फैक्टर मींस डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर गोल्ड के लिए डिमांड बढ़ेगा तो इसका प्राइसेस बढ़ेगा और अगर घटेगा तो इसका प्राइसेस घट, अभी कितना भी बढ़ सकता है कितना भी घट सकता है। नाउ देयर इज वन अनदर पार्टी ए व्हिच एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर एक्स। इसने प्रपोज किया कि सर इस गोल्ड के ऊपर जितना रिटर्न होगा, जैसे ये जो 10 kg गोल्ड आपका जो भी वैल्यू, सपोज दैट इट इज 1 करोड़। ठीक है, तो इस 1 करोड़ पे हम आपको 20% पर एनम का फिक्स रिटर्न देते हैं फॉर 10 ईयर्स। अगले 10 साल के लिए हम आपको हर साल 1 करोड़ का 20% आपका पे करेंगे। ठीक है, एज अ रिटर्न। अब इस गोल्ड का जो रिटर्न होगा वो हमारा होगा, तो दैट इज ये आपका फ्लोटिंग रिटर्न था, ये आपका फिक्स। सो द पार्टीज दे जनरली चेंज देयर पोजीशन फ्लोटिंग टू फिक्स। ठीक है, ऐसा आपका कॉमोडिटी स्वैप। ठीक है, वैसे ही आपका इक्विटी स्वैप सो व्हिच इज सिमिलर टू कमोडिटी स्वैप। ठीक है, द अंडरलाइंग एसेट इन इक्विटी स्वैप सिंगल स्टॉक, अ बास्केट ऑफ स्टॉक, ठीक है, और इंडाइसेस। 1 lakh of swap would involve cash flow based on performance of the underlying equity which is floating, while the another will that will generally bear the one is fixed, another one will be on floating basis। ठीक है, okay, just a minute, हाँ। राइट, चलो तो ये आपका जो पूरा जो कॉन्सेप्ट इसमें जो काम करेगा, अंडरस्टूड। चलो अब हम लोग आते हैं वैसे इसके अलावा भी कुछ और टाइप्स आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट रेट स्वैप जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, करेंसी स्वैप हमने पढ़ा, कॉमोडिटी स्वैप आपका, डेट टू इक्विटी इज, डेट टू इक्विटी स्वैप कैसे काम करेगा। So suppose that your bank have given loan to some XYZ company 50 crore rupees. Now that company is offering कि सर आप इस 50 करोड़ के बदले में 5% का इक्विटी ले लो। सो अभी तक उनका फिक्स रिटर्न पे आ रहा था, बैंक का जो रिटर्न था डेट पे फिक्स रिटर्न मिल रहा था। नाउ इट विल बिकम इन द फ्लोटिंग। ठीक है, क्योंकि इक्विटी में आप ओनरशिप में आ गए, इट डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशंस। ठीक है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप मैंने आपको बताया। ठीक है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप आपका जैसे एसबीआई और XYZ फाइनेंशियल के बीच में आपका जो हुआ था। ठीक है, टोटल रिटर्न स्वैप इज समथिंग कि जहां पे टोटल रिटर्न और सीडीएस में डिफरेंस क्या होता है ना। टोटल रिटर्न इज लाइक जैसे हमारे पास एक इक्विटी पोर्टफोलियो है 100 करोड़ रुपीस का। ठीक है, हमारे बैंक के पास एक इक्विटी पोर्टफोलियो है आपका। ठीक है, आपका सपोज दैट 100 करोड़ रुपीस का। ठीक है, अब इस पे जो रिटर्न है वो मार्केट रिटर्न है। ठीक है, अब यहाँ पे एक XYZ फाइनेंशियल आपका जिसने क्या बोला कि सर हम आपको इस 100 करोड़ रुपीस पे हर साल आपका 15% का रिटर्न देते हैं फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। इसका जो पोर्टफोलियो का जो मार्केट रिटर्न होगा दैट विल बिलोंग्स टू अस। ठीक है, अब टोटल रिटर्न स्वैप के अंदर क्या होता है ना, वी जनरली प्रोटेक्ट रिटर्न ओनली। ठीक है, ये जो एसेट की वैल्यू है ये प्रोटेक्ट नहीं होगी। जैसे सीडीएस में क्या हो रहा था कि अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही प्रोटेक्टेड थे, बट यहाँ पे सिर्फ रिटर्न आपका फिक्स हो जाएगा अगले 10 सालों के लिए। हो सकता है अगले 10 सालों में इस पोर्टफोलियो की वैल्यू आपका 10 करोड़ हो जाए, क्योंकि जो उसमें शेयर्स थे वो गिरते गए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, बट यू विल रिसीव दिस अमाउंट एज पर द एग्रीमेंट। बट दूसरी तरफ आपका हो सकता है 100 करोड़ का आपका 500 करोड़ भी हो जाए, दैट विल बिलोंग्स टू द बैंक इटसेल्फ। ठीक है, लेकिन ये जो रिटर्न आपका है ना वो हमने आपका क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, तो जल्दी से इनको एक बार गो थ्रू करो। द आइडिया बिहाइंड द इंटरेस्ट रेट स्वैप इज टू स्विच कैश फ्लो from a fixed interest rate to floating interest rate. In such swap, party A agree to pay a fixed rate of interest to party B on a notional principle. ठीक है, notional amount का मतलब समझ में आ गया होगा। So in currency swap, both parties exchange principal and interest payment on debt that is denominated in different currencies agreed by the parties. Currency swap can take place between
टू डिफरेंट करेंसी, जैसे यूएसडी एंड आईएनआर का हमने किया था, ठीक है। इट कैन बी आपका जैसे करेंसी स्वैप कैसे तीन टाइप्स में हो सकते हैं, प्रिंसिपल ओनली, कूपन ओनली और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अगर वो प्रिंसिपल ओनली है तो जो पार्टी जैसे जो इंडियन कंपनी और यूएस कंपनी उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ओनली, कूपन मतलब इंटरेस्ट का एक्सचेंज आपका, और आपका तीसरा प्रिंसिपल प्लस दिस। मोस्ट ऑफ टाइम यू विल सी कूपन ओनली स्वैप आपका जो जल्दी सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो दीज आर नाउ वेरी सिंपल, आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। Principal, the borrower continue to pay interest in USD terms, but benefit as using in principal amount in home currency without exchange risk. Coupon only, the US loan is utilized in the same currency, but interest is जैसे इंडिया में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, यूएस में कम है, तो वो खाली इंटरेस्ट रेट का एक्सचेंज, ठीक है। बट इंटरेस्ट ऑन यूएसडी लोन इज स्वैप्ड इनटू रुपी इंटरेस्ट, ठीक है। अगला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जहां पे दोनों का ही एक्सचेंज आपका होगा, ठीक है। सो डॉक्यूमेंटेशंस आपका स्वैप के अंदर अगर हम लोग डॉक्यूमेंटेशंस की बात करते हैं, ठीक है। सो ऑल डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट आर बाउंड बाय द इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ISDA डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स। प्लीज डू रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ दिस वन, अब बहुत बार पूछा भी जाता है, ठीक है। So the documentation is comprised in three stages. One is ISDA master agreement. Second one is schedule to master agreements, and third one is trade confirmation for each trade. ठीक है, जो buyer और seller आपके हैं तीन documents. All counterparties execute the ISDA master agreements without making any changes. However, all requirement for customization are incorporated in schedule to master agreements. ठीक है, मतलब बाय सेल डेट एंड एवरीथिंग वो आपका इसमें होगा, और विच इज कस्टमाइजेबल इन नेचर बाय द पार्टीज। द स्पेसिफिक कन्वेंट ऑफ ईच ट्रेड आर एलोबरेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड कंफर्मेशन, ठीक है। तो बाय और सेल का कितना खरीदा कितना बेचा, दैट विल बी पार्ट ऑफ दिस कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। इन द एवरी in the event of any dispute, what is stated in trade confirmation will rule superior to what is stated in the schedule, and what stated in the schedule will rule superior to the master agreements, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा जैसे सबसे ज्यादा जो आपका वरीयता मिलेगा किसको, मास्टर एग्रीमेंट को, बट मास्टर एग्रीमेंट के बाद आपका ट्रेड कंफर्मेशन, लीस्ट आपका किसको रहेगा, शेड्यूल आपका, ठीक है, शेड्यूल टू मास्टर एग्रीमेंट्स, ठीक है। सो जैसे आपका ट्रेड कंफर्मेशन से मतलब को प्रायोरिटी दी जाएगी ओवर दिस इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन और डिस्प्यूट, एंड ट्रेड कंफर्मेशन से ज्यादा आपका ISDA मास्टर एग्रीमेंट्स को, ठीक है, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, ठीक है। While introducing IRS interest rate swap, RBI has taken some bold step to increase the derivative market, which include again with is very important one, ठीक है। तो ऐसे जब भी ऐसी गाइडलाइंस दी जाती है तो बहुत बार पूछा जाता है। Bank have been allowed to use IRS not only for hedging but also for trading and speculation purpose, ठीक है। Which provision has boosted the treasury activities. RBI had earlier restricted benchmark only to domestic market, where on and off MIBOR, Mumbai Interbank Offer Rate, was widely used. Upon representation from the bank, RBI allow MIFOR is Mumbai Interbank Forward Overnight Rate, ठीक है। MIFOR is Mumbai Interbank फॉरवर्ड ओवरनाइट रेट, ये कहीं पे मेंशन होना चाहिए, ठीक है। हाँ ओके, हाँ यहाँ पे है, तो ये आपका फुल फॉर्म इसका ध्यान रखें। मिबोर, आई गेस एवरीबॉडी नो अबाउट द मिबोर, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। मिफोर इज मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड ओवरनाइट रेट, ठीक है। सो एज पर दी FPIL, विल टॉक अबाउट FPIL इन डिटेल, ठीक है, जहाँ पे ट्रेड्स होते हैं और या जो रेट्स आपका डिसाइड करता है, ठीक है। एक्सटेंड मेथोलॉजी, द मिफोर for overnight 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, 12 months tenure is calculated using the rolling up forward premium in percentage term, and USD LIBOR for relevant tenure. MIFOR is published up to 2 decimal points. The CCIL is the calculating agent. The USD INR rolling forward rate are published by 4:15 PM, and the MIFOR is published by 5 PM subject to availability of LIBOR itself, ठीक है। RBI has permitted bank under ISDA agreements to opt for dual jurisdictions
under Indian as well as common law jurisdictions. This provision is important for global bank to engage with the Indian banks also. ठीक है, तो ये आपका कुछ मेजर गाइडलाइंस है. गाइडलाइंस बहुत बार पूछा जाता है. ठीक है, bank authorized by RBI under section 10 of Foreign Exchange Management Act 1999, authorized dealers category 1 bank are permitted to become trading and clearing member of the exchange or traded currency option market of the recognized stock exchange on their own accounts and on behalf of their clients, subject to fulfillment of minimum prudential requirements. This is again very important one. ठीक है, तो कोई भी आपका जैसे कोई बैंक है जिसके पास ऑथराइज डीलर्स कैटेगरी 1 का आपका लाइसेंस है, सो दे कैन डील इन आपका करेंसी, they can become a member of exchange, ठीक है, recognized stock exchange. Basically they can become a member of trading as well as clearing member. ठीक है, अगर उनको ट्रेडिंग और क्लियरिंग मेंबर का लाइसेंस चाहिए, सो फर्स्ट बैंक दे नीड टू टेक ऑथराइज्ड डीलर्स कैटेगरी 1 लाइसेंस, जो ऑलमोस्ट सबके पास है. ठीक है, उसके अलावा यू हैव टू फुलफिल सम प्रूडेंशियल गाइडलाइंस व्हिच आर so very important. A, minimum net worth should be 500 crore and more. ठीक है, minimum capital adequacy आपका CAR और CRAR is 10%. ठीक है, net non-performing assets should not exceed 3%. Made net profit in last 3 years. ठीक है, the authorized dealer category 1 bank which fulfill the prudential requirement should lay down detailed guidelines with the approval of their boards for trading and clearing of exchange traded currency options, contract and management of risk also. ठीक है, तो ये अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है आपका इस पूरे सेशन का, और खासकर तो जो थोड़ा सा मतलब रेगुलेटरी उसमें जिनको आपको ध्यान रखना है. See, this is again part of the development of Indian forex market. ठीक है, सॉरी इंडियन स्वैप मार्केट और इंडियन डेरिवेटिव मार्केट. थोड़ा सा लेट आपका हेडिंग मिला है. ठीक है, सो इंटरेस्ट रेट स्वैप एंड forward rate agreements were first allowed by RBI in 1999. Indian banks are permitted by RBI to enter into only plain vanilla type of interest rate swap without any exotic structures. ठीक है, simple structures के साथ. And in order to overcome the possible conflict of interest in benchmark setting process arising out of governance structure of the fixed income money market and derivative association, which is FIMMDA, and Foreign Exchange Dealers Association of India, FEDAI, an independent body was set up, was to be formed either separately or jointly by FIMMA and FEDAI, administration of the benchmark. तो जिसको अभी हम लोग किस नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज, कहाँ गया, मैंने रखा तो था इसमें. ठीक है, फिनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड. ठीक है, तो ये जो आपका फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और आपका फिक्स इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट स्वैप या अदर्स हैं, या इनके जो आपका जैसे मिबोर मिफोर, इनके जो रेट्स आपके हैं वो आपका किसके द्वारा जो मतलब दे जनरली क्रिएटेड वन इंडिपेंडेंट बॉडी फॉर दैट पर्टिकुलर वन, जो इससे आपका इन एरियाज को देख सके. ठीक है, so during the period 2005-8, bank aggressively market structured product which combine different kind of option, barrier options, leverage options, digital options, currency and interest rate benchmark. So this derivative product can be offer only those corporate who have clearly laid down risk management policy approved by the board level, and bank must have substantially and appropriateness policy so they would avoid the mis-selling of their derivative products. ठीक है, तो बहुत बेसिक गाइडलाइंस है. आई होप अगर आप इनको गो थ्रू भी करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, आई शेयर दिस PDF एज वेल. ठीक है, की फीचर ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट मार्केट पार्टिसिपेंट ऑथराइज्ड डीलर्स कैटेगरी 1 एंड ऑल. ठीक है, हाँ, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा समझ लेते हैं. ठीक है, सो फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. So FBIL is an independent company, is a three-way joint venture between Fixed Income Money Market and Derivative Association of India, आपका Foreign Exchange Dealers Association of India and Indian Bank Association. तो इन तीन एंटिटीज के द्वारा मिलके आपका बनाया गया फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड. ठीक है, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड.
So it was formed in December 2004 as a private limited company under Companies Act 2013. It aimed to develop and administer benchmark relating to money market, government securities and foreign exchange in India. ठीक है, तो जो आपके जैसे लिबोर जैसे आपका लिबोर काम करता है वैसे मिबोर है, मिफोर है, तो ये जो रेट्स आपके होते हैं ना, दे आर जनरली कोटेड बाय और कैलकुलेटेड बाय दिस. ठीक है. So FBIL also announced the benchmark rate matrix, जैसे आपका MIBOR for 3 10 years, 14 day, 1 month and 3 months. Foreign currency rupee option volatile for 5 10 years of 1 week, 1 month, 3 months, 6 months, 12 months. Certificate of deposits and treasury bills. तो इनके जो rates आपके हैं that is generally quoted by FBIL itself. ठीक है. So FBIL is committed to providing financial benchmark that are, first one is free from bias, backed by robust data-driven research, compliant with global best practices. It commences its operation with publication of overnight benchmark rate FBIL overnight MIBOR in 2015 itself. Okay? FBI announced the benchmark rate for overnight Mumbai interbank rate on a daily basis except Saturday and Sunday and local holiday. The benchmark rate is calculated based on the actual call money transactions data obtained from NDS call platform or of Clearing Corporation of India Limited (CCIL). The CCIL act as calculating agent. The rate is announced at 10:45 a.m. every day for overnight call money. ठीक है. However, if the time is extended due to non-fulfillment of threshold criteria, the dismentation time may get substantially extended also. ठीक है, तो बहुत basic सा areas आपका. ठीक है. So this is it guys. This is all about your derivative market. ठीक है. So derivative is again like बहुत ही important आपका area है. ठीक है. And this is the most emerging financial product in the world. इंडिया में अगर हम लोग बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, वो आपका ऑप्शंस में है और स्वैप इज लाइक द मोस्ट इमर्जिंग प्रोडक्ट ऑल्सो, राइट. तो जहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट टूल की तरह इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. तो डेली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है. तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक जो एग्जामिनेशंस में आपको अप्लाइड बेस्ड चीज़ें मिलती हैं और अप्लाइड बेस्ड चीज़ों में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो बहुत बार एग्जाम मतलब ऑलमोस्ट हर बार आपको एग्जामिनेशंस में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे. आई होप यू गॉट दीज पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्लियरली. टीम सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी A to Z आपका. हमने स्टार्ट से लेके एंड तक सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हैं. ठीक है. वो आपका डेरिवेटिव का बेसिक हो, OTC वर्सेस एक्सचेंज ट्रेडेड हो या फिर आपका टाइप ऑफ डेरिवेटिव फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शन स्वैप, मतलब इतना डिटेल में पढ़ा है कि इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. तो इसीलिए थोड़ा सा आपका लेंदी वीडियो भी आपके रहे हैं. ठीक है. सो आई होप यू एंजॉय दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और कैसे लगा जरूर बताएं आपका कमेंट्स के थ्रू. ठीक है. सो एंड डू शेयर योर फीडबैक्स ऑल्सो. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही करते हैं. आई सी यू टुमारो एट सेम टाइम. सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस. Thank you for joining this session. Thank you for watching this session. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.